चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणिता सगणललिता श्री विशाखानंद हे कृष्ण गुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोप्यकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये अंशाकल्पतरुष कृपा सिंधु पच्चानां पावनभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय योग्यता विचारे कुछ नहीं पाए तुम्हारे तुम आशा और योग्य humble verses to the devotees. Seeking the mercy of Srila Prabhupada, Guru Maharaj and all Vaishnavas. तो डे बिफोर यस्टरडे हम लोग गीता सूर्य का प्रीवियस लाइफ के बारे में डिस्कस किए थे। तो this and we transformed by devotion. So thereafter, Sukadeva Goswami continued to describe the further descendants of daughters of Daksha. One of the daughters of Daksha named Diti married Kashyapa and gave birth to the demons like Hiranyakashipu and Hiranyaksha. Later she also gave birth to 49 Marutas. Diti married to Kashyapa. उनसे दो बेटा हुआ हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। हम लोग अभी जो महावतर नृसिंह चल रहा है तो उसमें भी देखा है दीति तो ट्राई टू कश्यप मुनि in the tribe of evening she wanted to have child, to bear the child she wanted to have copulation with this कश्यप मुनि उनका हस्बैंड है and इनसे ये दो बेटा आया हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बहुत खतरनाक है। तो वो जय विजय थे प्रीवियस लाइफ में। Later she also gave birth to 49 Marutas बाद में who become demigods along with Indra, their step brother from Aditi, mother of demigods. तो Diti and Aditi दो सिस्टर है। तो ये अदिति से आदित्य और दिति से दैत्य। दैत्य मीन्स राक्षस। Shukadeva Goswami narrated how the Marutas who are meant to be demons become demigods. वो भी राक्षस होने वाले थे। दिति से बच्चा दिति का बच्चा है। तो when her two sons Hiranyakashipu and Hiranyaksha are killed by Lord Vishnu to help Indra, Diti, the mother of demons, was overwhelmed with lamentation and anger. Diti contemplated Indra is cruel, hard-hearted, sinful, and sense-enjoyer. He is the killer of his brothers. One who enviously kills others for protecting one's own body will go to hell. I wish to have a son who can remove Indra's pride. Thinking thus, Diti began to consult Sir Kashyapa with humility, self-control, and sweet words. Though learned, Kashyapa was captivated by her artificial behavior and assured to fulfill her desire. Diti then requested Kashyapa, I want an immortal son who can kill Indra, the killer of my two sons. Hearing Diti request, Kashyapa lamented, alas, I will surely fall down to hell. My promise to give her a benediction should not be violated and also Indra should not be killed. Kashyapa then employed a special means to meet both ends. Instructed Diti about the rules of Pungsabana Brata. Pungsabana Brata. वो बोले आप एक व्रत करो तो ये पुंसवन व्रत don't harm or curse anyone, don't speak lies or touch impure things, worship cows, Brahmana, Lakshmi and Supreme Lord. If you perform this ceremony without violation for 1 year, Pungsabana Vrata, एक साल तक, you will give birth to a son who will kill Indra. तो ये
कश्यप मुनि ने उनको बोल दिया दिति को तो आप पुंसवन व्रत करो 1 साल तक, इसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, डोंट हार्म और कर्स एनीवन, डोंट स्पीक लाइज, टच इम्प्योर थिंग्स, वर्शिप काउस, ब्राह्मणस, लक्ष्मी एंड सुप्रीम लॉर्ड। एंड इसका वायलेशन नहीं करना, एक भी वायलेशन होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। Indirectly, Kashyapa by trickery of words implied that Diti would get sons, would follow Indra. So those selfish people take service with malicious intentions. Mature devotee engage their ability in devotion service. So expert devotee किसी को भी भगवान का सेवा में लगा सकते हैं, इसलिए प्रभुपाद। So Diti faithfully began discharging the vow, understanding her purpose. Indra started serving her in disguise. इंद्र उनको सेवा करने लगे डिस्गाइज में, by daily bringing flowers, fruits, roots, food, pushgrass and so on. So his intent was to find a fault in her brother. Manjiti unfortunately neglected to wash her hands and feet after eating and went to sleep during the evening twilight. ये इम्पोर्टेंट है, खाने के बाद में हम हाथ पैर सब धोना चाहिए। तो ये भूल गई एंड शाम का टाइम में सोने के चलेगी, दैट इज आल्सो नॉट गुड। शाम का टाइम में सोना नहीं है, इससे आपका मेमोरी बहुत डाउन हो जाता है। एंड शाम का टाइम में भगवान का भजन करना चाहिए। और इस टाइम में हम लोग डिस्कस किए थे, शिव जी उनका अनुचर के साथ में घूमते रहते हैं, कौन क्या कर रहा है। भगवान का सेवा छोड़कर अगर कुछ कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलता है। तो फाइंडिंग दिस फॉल्ट, इंद्र विथ हिज मिस्टिक पावर एंटर्ड दिति वुम्ब। वो इस मिस्टिक पावर से दिति का वुम्ब में चले गए। वहां पे जाके उनका जो थंडरबोल्ट है, उस वज्र है, उससे जो एम्ब्रियो उसमें है उसका काट के 7 पीस कर दिए, 7 पीसेस में काट दिए। अगेन ईच पीस को फिर 7 पीसेस में काट दिए, तो मतलब 7 into 7 49 पीसेस हो गया। So being aggrieved, the children pleaded to Indra with folded hands. Where are your brothers, Marutas? Why are you trying to kill us? ये ऐसे इंद्र अदिति का बेटा है, जब जितना डेमिगॉड्स है, इसलिए ये दिति का बेटा है ये लोग, तो इसका मतलब 2 भाई हो गए। इसलिए why are you brothers? बोले भैया हम लोग को क्यों मार रहे हो? why are you brother? Who are you brothers, Marutas? Then we are हम आपका ब्रदर है Marutas. We are trying to kill us. Why are you trying to kill us? Indra comforted them. If you are indeed my brothers in spirit, you have nothing to fear. The Diti got up from bed and saw her 49 sons as brilliant as fire in friendship with Indra. Diti asked Indra to tell the truth. क्या हुआ? Indra honestly admitted, dear mother, blinded by self-interest, I came to find fault in you to deflect your vow and caught your embryo. Please forgive me. I am a fool. इंद्र सबसे गलती करते हैं, बट उसको गलती को माफी मांगते हैं। तो the dead embryo has come alive by good fortune of your devotion. ये तो मर गए थे, डेड है embryo, लेकिन आपका डिवोशन में ये सब जिंदा हो गए हैं। Diti was pacified by Indra's honest confession and genuine demeanor. Therefore, Indra went to heaven with his brothers, the Marutas. तो ये फिर Marutas 49 Marutas को लेके इंद्र चले गए स्वर्ग को। लेकिन Diti यहाँ पे कैसे पेसिफाई हो गया? क्योंकि Indra's honest confession, तो सरलता ही वैष्णवता। तो यहाँ पे ऑनेस्टली वो कन्फेस किए कि मेरा इंटेंशन ऐसे ही था, लेकिन आपका व्रत अच्छा है, आपका व्रत हम छूट नहीं पाया, जिस पर्पस में हम आया था। लेकिन वो अच्छा हुआ कि आपका घर में जो थे एक एम्ब्रियो को 49 पार्ट हो गया, 7 into 7, तो ये लोग मरुत बन गए। तो ये पहले दिति का हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु, बाद में 49 और मरुतोज उनका बेटे। ये मरुतोज लोग डेमिगॉड्स बन गए। एक्चुअली दिति से जो राक्षस आते थे, लेकिन ये लोग डेमिगॉड्स क्योंकि पुंसवन व्रत किए थे। ये व्रत का इफेक्ट है अच्छा सन प्राप्ति करने का। तो ये पुंसवन व्रत जो है 1 साल के लिए किए थे। एंड don't harm anybody, don't curse anybody, don't teach, don't touch impure things, don't speak lies, worship the cows, brahmanas, लक्ष्मी, भगवान, सबको इस टाइप का पूजा करो। Now we come to 7th chapter, 7th canto.
7 and 8 cantos of Bhagavatam represent the भगवान का दो बाहु arms. 7th canto describes utti or inclination, which is of two types, auspicious, inauspicious. Our inclination lead us to perform pious and impious acts, which become the cause of our future happiness and distress in various paths. Inauspicious inclination of Hiranyakashipu were caused by the anger of the four Kumaras, who caused Jaya and Vijay to fall to the material world. The auspicious inclination of pure Bhakta of Prahlad arose from the mercy of Narada Muni, who enlightened Prahlad when he was still in his mother's womb. तो inauspicious inclination से दो टाइप का हो गया, बुद्धि एक auspicious and inauspicious. Inauspicious inclination से अब हिरण्यकशिपु का दिखाया गया, तो were caused by anger of four Kumaras. चतुर कुमार उनको अभिशाप दिए, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आए, विजय जय विजय इन फल डाउन कर दिए करिए. चौथी ऑस्पिशियस इंक्लिनेशन में भक्ति और प्रहलाद, इसमें डिस्क्राइब होता है. प्रहलाद when he was still in his mother's womb. So this canto describes two types of bhakti, शुद्ध भक्ति और pure devotion service of प्रहलाद, and मिश्र भक्ति और mixed devotion service. That is bhakti mixed with karma or and jnana. A person's following varnashrama, as instruction of Narada Muni, who King Yudhishthira describes. Prahlada teachings through his personal conduct and his devotional prayers, Lord Nrsimhadev, are by far the most enlivening section of this canto. तो भक्ति दो टाइप का यहाँ पे डिस्क्राइब किया. प्रहलाद महाराज की जो भक्ति करते थे प्योर डिवोशन है, और मिश्र भक्ति है जो जिसमें कर्म और ज्ञान मिश्र होते रहता है. So how did Lord Vishnu, who is equal and dear to all, take sides with Indra and kill demons as if he were biased? परीक्षित महाराज पूछ रहे सुखदेव गोस्वामी को, विष्णु तो सबके लिए इक्वल है, तो फिर लगता है वो इंद्रियों का साइड लिए एंड डिमॉन्स को सब मार दिए as if he were biased. The Lord killed Hiranyaksha and Hiranyakashipu as Varaha and Nrsimha respectively to favor Indra, apparently acting partially towards the demigods and inimically towards the demons. Although Parikshit knew that the Lord is impartial nature, he desired to release the nectar of confusion from the mouth of Shukdev and thus inquired from him about the Lord's apparent partiality. लगता है कि ये मार दिए इनको, हिरण्याक्ष को, हिरण्यकशिपु को, तो इंद्र को या डेमिगॉड्स के हेल्प करने के लिए, तो ये कैसे हो गया? इम्पार्शियलिटी नहीं है, पार्शियलिटी हो गया. तो ये humble devotee although knowledgeable is eager to hear from experienced devotee who illuminate a spiritual subject with their deep realizations. तो एक भक्त जो है, even if उसका वो ज्ञान है उसका, फिर भी वो experienced devotee से सुनना चाहता है उसको टेस्ट को पाने के लिए. साधु साधु पदे पदे श्रीमद् भागवत. तो इसलिए एवरी स्टेप में टेस्ट है, इसको टेस्ट को रिलीज करना है. तो सुखदेव appreciated Parikshit's question. Your question is about the wonderful qualities of Lord Hari. It will reveal the glories of devotees and increase one's bhakti. Sukadev then narrated. So why does God seem partial? भगवान लगता है भगवान पार्शियल है, लेकिन नहीं है. ऐसे प्रहलाद exhibited only under the partiality is exhibited only under the influence of material modes. Lord Vishnu is unborn, ajaha, devoid of material qualities, nirguna, and transcendental to material nature, prakriti paraha. Consequently, he cannot be partial. He creates the time factor to control his universal creation. Due to the influence of time, when Sattva-guna becomes prominent, the demigods flourish. Similarly, when Raja and Tamaguna are prominent, the demons flourish. But Lord is neutral and equal to everyone. सत्वगुण हमारा जब हम सत्वगुण में रहेंगे तो डिवोटी क्वालिटी या डेमिगॉड्स क्वालिटी आ जाएगा, एंड रजो तमोगुण रहने का डेमोनिया क्वालिटी आता है. तो इसलिए गुण का प्रभाव है. तो he cannot be partial, he create time factor. टाइम का हिसाब से
कोई कब सत्वगुण में रहता है, मॉर्निंग टाइम में सत्वगुण, रजोगुण फिर डेवलप करता है, दोपहर टाइम आ जाता है, तमोगुण फिर शाम को। तो दी लॉर्ड्स yet he is especially inclined to his devotee or demigods शूर प्रिया, फिर भी वो समम सर्वभूतेषु न मे दुष्यस्ति न मे प्रिय, ये भजन तो मां भक्त्या मोहिते सुचाप्यम, मैं सबके लिए समान हूँ, फिर भी मेरा भक्त के लिए मैं थोड़ा स्पेशल इंक्लेशन रहता है। However, even when he punishes and kills demons, he does not cut off. He does so out of his mercy for them and thus grant them liberation. भगवान इवन भक्त को छोड़ के भी जिसको भी पनिशमेंट देते हैं, ये डिमॉन्स को, तो फिर भी उनको मुक्ति दे देते हैं, वो असुर शरीर से मुक्ति प्राप्त हो जाता है। The Lord's inimical actions are not displayed. Displays of enmity toward his so-called enemies. One thinks so only out of ignorance. तो भगवान जो एनिमिकल दिखाते हैं वो एक्चुअली एनिमी नहीं है, उनको कृपा करते हैं। God is not partial to anyone but respects according to how we approach him. जैसा हम प्रपोजते हैं सदैव भजामि हम। To elaborate on the subject of Lord's impartial nature, Shukdev Goswami narrated the following conversation between King Yudhishthira and Narad Muni that constitute the subject matter of entire 7th canto. ये जो 7th canto नारद मुनि बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, उनका कथोपकथन चल रहा है, उसका बारे में 7th canto है। God's astonishing mercy. Formerly at the Rajasuya Yajna sacrifice, Yudhishthira had offered first worship to Lord Krishna, Agra Puja. And here Shishupala could not tolerate it and blasphemed Krishna in many ways, despite the opposition of the assembly members. Finally, Krishna beheaded Shishupala with his Sudarshan Chakra and liberated him. Mukti de diye, Sajuja Mukti. Shishupala merged into the body of Krishna, Sajuja Mukti, right in front of everyone's eyes. Seeing this, Yudhishthira was struck with wonder and asked Narad Muni, "This is extremely surprising. How is it that a willful offender like Shishupala has attained Lord Vasudeva, which is an impossible achievement for even a great endeavoring spiritualist? Formerly King Bena went to hell for blaspheming the Lord, but sinful Shishupala, who blasphemed Krishna right from his childhood, entered the body of Krishna. How is this very ever possible?" Narad replied to Yudhishthira's inquiry as follows. कैसे पॉसिबल हो गया? वो तो उनको मार दिए, वो तो एनवियस थे, फिर भी उनको मुक्ति दे दिए। Krishna's inconceivable compassion on greatest offenders astonishes even great devotees. God is merciful to both demigod and demons, but his favor and punishment are ultimately his mercy and are supremely beneficial. भगवान किसी को कृपा करते हैं तो बेनेडिक्शन के माध्यम में या कर्ष के माध्यम में उनके लिए समान है, क्योंकि उसी दोनों के माध्यम में उनका मंगल ही करते हैं भगवान। और ये ऑल ऑस्टिशियस हो, इनऑस्टिशियस उनके पास में आ ही नहीं सकता। The material body is meant to experience dualities of blasphemy and praise under the influence of Maya. The conditioned soul identifies with the body and its belongings and considers people to be friends and enemies. But the Lord has no material body, so he is unaffected by dualities of honor and dishonor. हमारा मेटेरियल बॉडी है, इसीलिए हमको कोई अच्छा लगता है, कोई सुख लगता है, दुख लगता है, कोई अच्छा बुरा लगता है। भगवान का पास में वो तो ट्रांसेंडेंटल बॉडी है, प्यूरिफाइड है। तो even one who criticizes Krishna is purified and liberated by his mercy. If that criticism leads to complete absorption in Krishna, अगर भगवान कोई क्रिटिसाइज करता है शिशुपाल जी से, लेकिन उनको कृष्ण का साथ में पूरा इमर्ज हो जाते हैं चिंतन में। But if such criticism does not lead to absorption, the criticizer go to hell. तो कब even criticizer also कोई बच जाता है, वो कोई भगवान का पास में आता है, शिशुपाल जैसे कंप्लीटली भगवान से ऑब्जर्व हो गया। अगर वो ऑब्जर्वेशन नहीं है, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो he will go to hell like बेना, किंग बेना, जिसका बाद में पृथ्वी महाराज आए उनका। तो एक बेना वॉज एट्रिशियस, बहुत सबको कष्ट देता था। Constant thinking of Krishna with devotion or enmity frees one from all sin and enables one to regain one's spiritual body. तो हो सकता है वो भक्त नहीं बन सकता है, तो
स्वजीज मुक्ति मिल सकता है। गोपी एक्टेड कृष्ण बाय लव, इसलिए यहाँ पे यही बोला है कि कैसे भी हो भगवान को स्मरण करने से एक आदमी मुक्ति प्राप्त हो सकता है। इधर मुक्ति नहीं तो भक्ति हायर लेवल मिलता है। तो हम लोग को भक्ति को ट्राई करना है, क्योंकि फेवरेबली कृष्ण को रिमेम्बर करना है। एनमी का हिसाब से अनफेवरेबली रिमेम्बर करेगा तो हम लोग मुक्ति मिलेगा, साजुज मुक्ति, लेकिन भक्ति नहीं मिलता है। तो गोपी कैसे कैसे कौन याद करते थे भगवान को, यहाँ पे वही लिखा गया है। कृष्ण को कैसे गोपी लोग बाय लव उनको चिंतन करते थे, कंस बाय फियर डर से, शिशुपाल अदर्स आउट ऑफ एनवी ईर्ष्यान्वित होते, जोधुज बाय फैमिलियरिटी, पांडवज बाय अफेक्शन and general devotees by devotional service. Thus, when the mind is somehow or other fully absorbed in Krishna, the material part is very soon vanquished, and the spiritual attraction up to Krishna becomes fully manifest. Somehow or other, one should concentrate the mind on Lord Krishna for one's own purification. ऐसा भी हो, observation in Krishna ever with negative feelings lead to liberation. But then to speak of lovingly remembering and serving him. Impersonal liberation in which the active spirit soul does not find any positive engagement is a temporary platform from which one becomes susceptible to fall down to the material realm. Devotees who get absorbed in their eternal role of loving service to Krishna are completely satisfied and thus immune to any fall down. तो इसमें भी बोल रहे हैं कि जो सजुज मुक्ति बोलता है उसको ब्रह्मज्योति में मिल जाते हैं, तो उसमें जाके क्या होता है, वो फॉल डाउन होने का चांसेस है दोबारा। लेकिन भक्त लोग वहां नहीं जाते हैं, वो लोग वृंदावन, तो वहां से फॉल डाउन नहीं होगा। तो शिशुपाल एंगर और envy towards Krishna led him to deep and constant observation of Krishna. Thus he was liberated. In his previous life he was actually a devotee of Lord Vishnu, Jaya and Vijay, the lords of Vaikuntha, were once cursed by the four Kumaras and took 3 baths as demons. हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हुआ एक बार, then रावण कुंभकर्ण हुआ, then शिशुपाल and दंतवक्र. So Jay and Vijay actually came to the material world as demons to fulfill the Lord's desire, to fight and experience the mellow of chivalry. The descent of the Lord and his associates into this world is an action of spiritual energy. Hearing this, Yudhishthira inquired from Narada about how Hiranyakashipu, who tormented his virtuous son Prahlad, and was thus killed by Lord Nrsimha. He also asked how Prahlad became such a great devotee. Narada Muni narrated as follows. तो अभी तक हम डिस्कस किया, किसी का कुछ डाउट है क्या? हम तो आज थोड़ा ज्यादा इंग्लिश में पढ़ा है। I hope people are able to understand English, no problem. तो किसी को कुछ डाउट है? कोई लोग भागवत प्रभाव कोई बुक मंगाया है? तो अभी हमारा नेक्स्ट वीक में ये लोग जा रहे हैं, कौन है, शोभन प्रभु जा रहे हैं कल्याणी ट्रेनिंग, वहां से वो मायापुर जाएंगे, तो उनको बोलने से भी मिल सकता है। The descent of the Lord and his associates, ये इससे कैसे हुआ ये बता रहे हैं। Lamentation and pacification. The Hiranyakashipu, the king of demons, was grief-stricken when his brother Hiranyaksha was killed by Lord Varaha. हिरण्याक्ष कैसे मरे? बरादेव उनको मारे थे। Intending to kill Vishnu, he instructed demons influenced by Maya. But Vishnu has given up neutrality just as a restless child takes sides. I say, behead that diplomatic Vishnu with my trident and freeze my brother with his blood. When he is killed, the demigods will wither away, just as when the tree's fruit is cut, the branches and twigs dry up. Immediately go and destroy everyone who is engaged in austerity, sacrifice, Vedic study and so on. Destroy places where there are cows, brahmanas, yajna and dharma. Hiranyakashipu desired to kill Vishnu by destroying Brahmanical culture, and as a side benefit destroy all demigods. As a side
एज ए साइड बेनिफिट destroys all the demigods. तो ब्राह्मणिकल कल्चर को खत्म करने के लिए कर दिया। तो हिरण्यकशिपु, हम लोग ब्राह्मण कल्चर का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। The demons were inherently fond of destructive activities, started persecuting citizens. They set fire to the cities, villages, pasturing grounds, cow pens, garden, agricultural fields and natural forest and so on. तो ये तो पता है हिरण्यकशिपु कैसे टॉर्चर किए सब लोगों को। तो हिरण्यकशिपु उनका मदर को दीति को पेसिफाई करने के लिए एंड अदर रिलेटेड स्टोरी ऑफ सुयज्ञ was king of Kusinara. When he was killed in a battle, his queens lamented in separation from him. They did not allow his dead body to be burned, even though the sun was about to set. Their cries even reached Yamaraj. यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे बोला, even though the sun was about to set. जनरली प्रिफरेबल है कोई शरीर त्याग करता है तो उसका जो डेड बॉडी को ट्राई करना चाहिए उसी दिन में, दिन का बिफोर सनसेट इसको ट्राई किया जाता है बॉडी को क्रेमेशन करने के लिए। क्यों पता नहीं, देखना पड़ेगा। एक बार एक वल्चर एक फाउल, ये दोनों एक डेड बॉडी का ऊपर में उनका लॉजिक चलता था। एक डेड बॉडी, एक आदमी मर गया, उसके बाद में उसका रिलेटिव्स लोग उसको डेड बॉडी के लिए वो अरे मर गया बोल के उसका पास में शोक का प्रकाश कर रहे हैं, बहुत दुख प्रकाश कर रहे थे, वो छोड़ नहीं रहे थे डेड बॉडी को। तो देन ये जैसे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष मरने के बाद में ये स्टोरी बोल रहे हैं ना, जैसे सुयज्ञ का कि कैसे बैटलफील्ड से ये हुआ, ये बता रहे थे। वो मर गए तो फिर उनका कोई लोग लेमेंट कर रहे थे, तो इसलिए ये ज्ञान देते थे अरे शरीर तो टेम्पररी है। कौन बोल रहा है? हिरण्यकशिपु वाज वेरी लर्नेड पर्सन, वो पूरा शास्त्र ज्ञान था। वो उनका भाई मरने का बाद में उनका फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनका मदर को समझा रहे हैं, डोंट वरी, दिस थिंग्स इज बॉडी इज टेम्पररी, सोल इज इटर्नल। ये सारे चीज उसको पता है हिरण्यकशिपु को, सारे चीज शास्त्र मालूम था। फिर ये कैसे हो गया, ऐसे क्यों हो गया? तो बोलने में तो ठीक है, थ्योरी बोलने में तो बढ़िया है, बोल सकते हैं शरीर है, शरीर टेम्पररी है, आत्मा है, लेकिन एक्चुअली आत्मा लेवल को जाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। टू बी इन द सेल्फ रियलाइजेशन पोजीशन, ये आत्म तत्व, आत्मविज्ञान, आत्मदर्शन करना बहुत आसान नहीं है। और ये लोग इसीलिए थ्योरी बहुत बोल देते हैं। बहुत लोग है भक्ति नहीं करते हैं बट बहुत क्लासेस देते हैं और बोल देते हैं बहुत ज्ञान है। सब ज्ञान, उस ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है उससे सुनने से क्या होगा। इसलिए ये भी बहुत ज्ञान दे रहे थे। तो एक बार ऐसे ही हुआ, एक डेड बॉडी मर गया, एक आदमी मर गया, डेड बॉडी का पास रिलेटिव्स लोग रो रहे हैं, कुछ लोग उनको छोड़ नहीं रहे हैं। हाँ, तो शाम हो जा रहा है, तो इसीलिए शाम होने से पहले डेड बॉडी को क्रेमेट करना चाहिए। अगर दिन में शरीर त्याग किया तो दिन का अंदर में ही ट्राई करना चाहिए उसको, डेड बॉडी को क्रेमेट करना है। वहां जब एक जैकल था, जैकल या फॉक्स, अनदर एक कौन था, वल्चर शागुना। दोनों का अंदर में डिस्कशन हो रहा था। ये जाके बोलता है वल्चर बोलता है कि भाई डेड बॉडी को दिन में ही उसको दफना ये करना है, मैंने क्रेमेशन नहीं करना है। वो बोल छोड़ दो, उसको फेंक दो। तो दिन में ही करो, दिन का अंदर में करना चाहिए। जैकल बोलता है नहीं,
दिन में मत करो, हाँ, ये रात को करो। थोड़ा सा आपका देखिए ये रिलेटिव है, ये चला गया, इसके लिए आप थोड़ा देर उसके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह का कुछ डिस्कशन हो रहा है। तो इसमें क्या कारण था कि दोनों का इंटेंशन है किसको फायदा मिलेगा। कल्चर जो है दिन में उसको देखेगा, खा लेगा, तो जो शव को, डेड बॉडी को फेंक देगा, खा लेगा। लेकिन जैकल जो है वो रात में खाएगा। तो इस टाइप का दोनों का इंटेंशन अलग अलग है। उसी हिसाब से अर्ध कुटन है फिलोसफी बोल रहा है। तो यहाँ पे ये भी फिलोसफी बोलता है हिरण्यकशिपु, लेकिन ये समझा नहीं कुछ, थियोरेटिकली समझते हैं। तो दे डोंट अलाउ। हम लोग भी ऐसे ही है, थियोरेटिकली हम समझते हैं, बढ़िया भैया बढ़िया, बागुंदी बागुंदी स्टोरी जैसे है। बागुंदी बागुंदी स्टोरी सब जानते हैं, नहीं जानते? एक बार ये साउथ इंडिया में एक बड़ा हनुमान जी का मूर्ति, बहुत बड़ा मूर्ति, मे बी 50-60 फुट और 100 फुट होगा, जो भी, इसका प्रतिष्ठा करना था, इनॉग्रेशन। तो चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया, भाषणबाजी हो गया, उसके बाद में जाके फूल माला अर्पण करना है, पहला बार इनॉग्रेट करना है। तो उनको कैसे इतना पूछा जाएगा, तो एक क्रेन में उसको जैसे बैठा के फिर ऊपर लिया। तो जब जा रहे थे, गणेश मूर्ति, गणेश का साउथ पे गणेश मूर्ति, कोई बात नहीं। तो ठीक है, वहां पे जाते हुए देखे उनका बहुत नेवल बहुत डीप है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये उसका नवी में नेवल पोर्शन, तो वहां पे एक अंगूठी अंदर में डाल दिया। वो अंदर में एक स्कॉर्पियो था, स्कॉर्पियो पंखड़ा बिछा, वो उसको काट दिया। इसका कष्ट हो रहा है, लेकिन देख रहा है सारे नीचे लोग है, देख रहे हैं इन्हीं को, ये हीरो है। अभी अगर वो बोलेगा वो मेरे को कष्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे मेरे को ये काट दिया स्कॉर्पियो, सब कोई हंसेंगे, क्योंकि मूर्ख जैसे क्यों उसमें अंदर में हाथ डाल रहा था। तो इसीलिए कुछ बोला नहीं। उसका जाके फिर ऊपर जाके माला, बड़ा माला, हमारे टीचर बोलते हैं, और उसका 10 फुट का माला, माला पहना के फिर आ गया नीचे। देन नेक्स्ट टर्म डेपुटी सब कोई उसको बोले, सर इतना ऊपर में आप गए और माला पहनाया, इतना बड़ा मूर्ति इनॉग्रेट किए, कैसे गणेश जी का मतलब कैसे लगा, कैसे? बागुंदी बागुंदी मतलब साउथ में उसको तो बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो बागुंदी बागुंदी बोला। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आता है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का, वो भी जाता है। वो देखा चीफ मिनिस्टर भी जाके वो नेवी में हाथ लगाया था, गणेश जी का बड़ा नबी कैसे देखते हैं, ये भी अंगूठी डाल के देखता है। तो वहां पे वो बिच्छू जो है काट देता है। इसका भी कष्ट होता है, लेकिन वो बोलता है अरे मैं अगर ऐसे कष्ट हुआ बोल के किसी को मैं चिल्लाऊंगा, अच्छा ये तो अच्छा नहीं लगेगा, सब कोई बोलेगा अरे इसको बिच्छू काट लिया, खराब, ये कैसे हो गया, क्यों हाथ डाला। इसलिए वो कुछ नहीं बोला, उसको टॉयलेट करते हुए, बहुत टॉयलेट एंड कोऑपरेट ऐसे बोलते हैं, टॉयलेट कर लिया। इसके बाद ऊपर जाके फिर वो 8 हाथी का माला, 8 फुट का माला, फिर उनके लिए छोटा माल, थोड़ा सा छोटा पहना दिया। खिलाने के बाद में सबको पूछे कैसे कैसे लगा, हाउ डू फील? बागुंदी बागुंदी, वेरी फाइन वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, तो देन नेक्स्ट हो सकता है कि नेक्स्ट पर्सन फिर कोई चेयरमैन को भेज दिया, वो भी ऐसे गया, उसको भी हाथ डाला। 4 लोग की है, हम भी करेगा, तो डाल दिया, उसको भी काटा, वो भी कुछ नहीं बोलता है। आने का कैसे लगा, बागवती बागवत, तो वेरी गुड। तो दिस स्टोरी हमारे टीचर पहले बचपन में बताते, बचपन में कृष्णा कंसेशन से शुरू में, तो इसीलिए वो बोलते हैं बागुंदी बागुंदी। ये मेटेरियल, इसका कहने का मतलब था ये मेटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ सफर कर रहा है, वी आर ऑल सफरिंग दिस मेटेरियल वर्ल्ड, बट वी आर टेलिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई पूछेगा बहुत अच्छा है, इसलिए हमको कोई अगर पूछता है प्रभु जी हाउ आर यू, हम लोग बोलते हैं वेरी फाइन। एक्चुअली सब कोई प्रॉब्लम में है, लेकिन सब कोई बोलते हैं वेरी फाइन। तो ये वेरी फाइन बोलने से हमारा टीचर बहुत गुस्सा आता है, अरे क्या फाइन है तुम्हारा, मेटेरियल वाली फुल ऑफ डिफिकल्टीज, वेरी फाइन क्या है, हाँ ऐसे डांटते हैं। तो इसलिए हम लोग को पूछने से बोलते हैं, हाँ बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा वी आर वेरी फाइन।
कि जो भगवान दिया है वही अच्छा है। तो इसीलिए ये बागुंदी बागुंदी स्टोरी, उसका साथ में और एक स्टोरी रहता है, और दूसरा जगह में बोलते हैं कॉपी कैट। एक स्टोरी है कॉपी कैट, ये मेटल वर्ल्ड का। तो ये मेटल वर्ल्ड एक आदमी दूसरा को फॉलो करता है, जैसे ये गया उसका पीछे, वो पीछे, ऐसे फॉलो करता है। वो जो कर दिया ये भी कर दिया। तो इस टाइप का मेटल वर्ल्ड में दुख में रहेगा। प्रभु जी बहुत अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बहुत फाइन है। प्रॉब्लम नहीं है तो मेटल वर्ल्ड में कैसे रहा भाई? तो इसीलिए इधर ये शुद्ध भक्त होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, तो लेकिन फिर प्रॉब्लम है, वो बोलता नहीं है, बोलता बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेटलिस्टिक पीपल जैसे हैं हम लोग। दूसरा स्टोरी है कॉपी कैट। ये साउथ इंडिया का स्टोरी है, हमारे टीचर साउथ इंडिया का स्टोरी बोलते थे। एक आदमी, एक स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, एग्जाम लिख रहा है, कुछ जानता नहीं है। तो इसलिए उसका एक फ्रेंड है, उससे देख के कॉपी करके लिखता था। वो आगे बैठा, ये पीछे बैठा है। बोलता भैया थोड़ा सा मेरे को साइड करके बैठना, वो दिखाना, तो हम लोग मैं तुम जो लिख रहे ना उसको मैं कॉपी करूंगा। ठीक है। वो थोड़ा साइड करके बैठता है, ये देखता है उसका कॉपी और लिखते जाता है। लेकिन उसका ये लिखते लिखते देखा एक जगह में एक फ्लाई, मक्खी मक्खी चिपक गया है वहीं पे ना। कभी कभी क्या है ना, कॉपी का अंदर में मक्खी रह जाता होगा तो कॉपी, मक्खी का भी क्या हो जाता है, पूरा प्रेस हो जाता है, प्रेस होकर वहीं पे चिपक गया। तो ये सोचा दैट इज ऑल्सो सम सिंबल या समथिंग, हो सकता है बायोलॉजी लिखता होगा, क्या पता नहीं है। तो ये बोल रहा है मक्खी यहाँ पे है, तो मेरा कॉपी में शायद एक मक्खी को लगाना पड़ेगा। वो सोच रहा है ये मक्खी को ये जानबूझ के कुछ कहीं से लाके लगाया गया है। मक्खी उसमें प्रेस हो गया वो कॉपी में पहले से, उसको वो नहीं जान पा रहा है या जानता नहीं है क्या है। तो इसलिए ये मक्खी को लगाया, तो हमको भी एक मक्खी लाना पड़ेगा। तो ये मक्खी को क्या करता देखा, वो एग्जामिनेशन हॉल में एक मक्खी घूम रहा है। तो इसलिए वो उसका सीट छोड़ के वो मक्खी का पीछे भाग रहा है, उसको पकड़ के मारने के लिए। वो जाके ऐसे उसको मारने के लिए। टीचर बोला क्या हुआ तुम एग्जाम हॉल में? उसका जो इन्विजिलेटर है उसको बोला अरे क्या हुआ तुम्हें मक्खी का पीछे क्यों भाग रहे हो, इतना डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसके बाद में वो मक्खी को लाके, सुनता नहीं, मक्खी को पकड़ के मार के लाता है और वो कॉपी का ऊपर में रह के उसको प्रेस कर देता है। इसको बोलते हैं कॉपी कैट। तो इसीलिए हम लोग मेटेरियल वर्ल्ड में जो है ये दो स्टोरी को याद रखना चाहिए, बागुंदी बागुंदी और कॉपी कैट। ये स्टोरी हम लोग सारे ऐसे ही है। ये हिरण्यकशिपु से शुरू करके ये बहुत सारे ज्ञान देते रहते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज अबाउट द सोल एंड ऑल दे आर हैविंग, वी आर आल्सो हैविंग द सेम थिंग। कुछ मिल गया ज्ञान, तो हम लोग तो ज्ञान देने के चले जाते हैं, लेकिन आप वो ज्ञान को अपना जब काम में लगाना है लगा नहीं पाते हैं। तो ये हिरण्यकशिपु ऐसे ही है, उसका माता को समझा रही है, फिर उसके बाद में फिर फाइट करने के लिए विष्णु का अगेंस्ट में चला जाता है। ये बोलते हैं कि सोल सुपर सोल सब बोलता है, लेकिन फिर समझता कुछ नहीं है। तो they didn't allow his dead body to be burnt even though the sun was about to set. Their cities even they cried even reached Jamraj. when किसका सुजज्ञ जो उसीनर का राजा था उसका बारे में हिरण्यकशिपु बोल रहा है। वो एक बैटलफील्ड में मर गया था, उनका रानी लोग प्रयत्न कर रहे थे, जमराज का पास में क्रंदन पहुंच गया। तो there is no exception for death, the same soul migrates in bodies of different। तो जमराज बोले उनको देखिए ये तो मरना है तो श्योर है, मरते धाम में आया तो मृत्यु होगा। the same soul migrate in the bodies of different species that appear and disappear by the karma of the jiva, but the soul identifies with the body and body relationship due to ignorance. It is as foolish as a householder thinking himself identical with the house, ऐसे बोला। हम लोग सोचते क्या, हम बॉडी के कॉन्सेप्ट में है, तो हम सोचते हैं कि घर बार छोड़ के नहीं जा सकते हैं, हमारे घर में हम कोई घर में नहीं रहेगा, कह लेना पड़ता है, लेकिन चोरी हो जाएगा। तो एक बार ऐसे ही लास्ट टाइम बुर्ला में एक बार बहुत दिन पहले हमारा दूसरा भक्त गए थे, प्रभु और माता जी, वो जा नहीं पाते थे। मैं बोला यार आप एक काम करो, आप साला जी को बोलो वो भुवनेश्वर में रह जाएगा आपका घर में। प्रभु जी मेरा घर है ना, ये अकेला छोड़ के मैं कैसे जाऊंगा, तो कोई आएगा चोरी हो जाएगा उधर। तो चोरी हो जाएगा तो उधर घर क्यों इंडिविजुअली बना है, जानते हो चोरी हो जाएगा, है ना। तो कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, ऐसा व्यवस्था करना है तो कैसे करेगा वो, तो आप अपना अपना लुकआउट है। तो इसीलिए
वो बोला कैसे जाएंगे? मैं बोला ठीक है, तुम्हारा जो साला है वो तो अच्छा है, आपका घर का काम सब कर रहा था, आप उन्हीं को बोलो रात में जगेगा, आप जाओ। तो फिर आने के बाद में प्रभु जी से ऑफिस में बैठ के हमारी प्रभु से डिस्कस हो रहा था, हम लोग तो कैसे करेगा, छुट्टी नहीं, मतलब छुट्टी तो ठीक है, लेकिन अभी हमारा घर में कौन विल बी दिस जोगवाली क्या बोलते हैं, गार्ड 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 करेगा, इसलिए हमको आ नहीं पा रहा है। ये फंक्शन में आना मुश्किल है। ये भगवान का गुरुदेव कृपा से समाव वी कैम, और हमारा सर ने बता दिया, वो साला को हम रख के आ गया, तो बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल वो भक्त भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इतना लोग उनके लिए फैसिलिटी मिला, कोई ट्रांसफर होकर घर का पास में चला लोग जाते हैं, उसका बाद में भी दूर से ट्रांसफर हो जाता है, फिर लोग कमिटमेंट देते हैं। हम जब ट्रांसफर होगा, घर में रहेगा, जाने आने का इतना दूर से 2 घंटा जाना 2 घंटा जाना, वो खत्म हो जाए, टाइम नहीं होता है, इसलिए हम श्रवण नहीं कर पाते हैं। फिर भी हम ट्रेन में जाते हुए, फिर बस में जाते हुए थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, लेकिन घर का पास में जब आते हैं तो बोलते हैं क्या है, मैं थोड़ा बेटी को घर का ना छोड़ना पड़ता है। कहाँ पे? कॉलेज में। अच्छा भैया, पहले जब हम जाते थे दूर ऑफिस पहुंचने के लिए, बेटी को कौन छोड़ता था? नहीं, उस टाइम में बेटी का ज्वाइनिंग नहीं हुआ होगा, बट एनीवे दीज आर द थिंग्स विल कम। तो हम लोग बेटी को छोड़ते हैं, बेटा को छोड़ते हैं, वो सब छोड़िए, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये है कि हम लोग छोड़ेंगे, लेकिन भगवान का सेवा कौन करेगा? बेटा बेटी का तो सेवा करना चाहिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन बेटी भी बड़ी होके कोई 12th में पढ़ रही है, कोई बेटा 8th 9th 10th में पढ़ रहा है, अभी पिताजी जा रहे हैं छोड़ने के लिए। मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टोरी गोज बिहाइंड दिस पीपल, और जो डिवोटीज का मैक्सिमम ये क्लास नहीं सुन पाते हैं या जप नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। मतलब दिस इज द रियलिटी, बट कहना नहीं करना है नॉट इंडिविजुअल पर्सन थिंग्स, बट थिंग इज दैट हाउ टू यू टू इम्प्लीमेंट। भैया उसको करो, कोई बात नहीं, उसको करो, कब करो, कैसे करो, बेटा भी जाएगा, बेटी भी जाएगा, हम भी जाएंगे ऑफिस, वो सब होगा, लेकिन सब कुछ तो रहेगा। चार आर एन नंबर एक्सप्लेनेशंस आर देयर। सो इसलिए हमारे टीचर बोलते हैं यूज योर इंटेलिजेंस टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन या टू सर्व लॉर्ड, बट डोंट यूज योर इंटेलिजेंस टू गिव एक्सप्लेनेशन दैट व्हाई आई कैन नॉट सर्व कृष्णा। सिमिलरली लोग बोलेंगे, अभी देखिए मैं किसी किसी के बारे में सोच रहा सवेरे, 50 हमारी प्रॉब्लम ने 2 महीना पहले हमको 2 बार बोल चुका है, मैं लोगों को बोला, फिर भी लोग बोलते हैं हमारा कुछ काम है। भाई 15 अगस्त छुट्टी है, 16 सैटरडे एक छुट्टी ले सकते हैं, ये संडे, तो हम लोग बोलेंगे नहीं जाएंगे क्या? इतना 2 महीने से पता है कि देयर इज ए, मैं बोला प्रभु बोला है और ये है, इसको इसी हिसाब से कीप योर टाइम फ्री। तो फिर अभी कैसे टाइम क्या हो गया? ऐसे नहीं कोई डेथ बेड में तो गिर गया, ऐसे तो नहीं है, बट एनीवे आई एम जस्ट टेलिंग द फैक्ट। ये फैक्ट को वेरी फाइन नहीं कहना है, हमारा टीचर मना किया कि डोंट टेल वेरी फाइन, आई एम वेरी फाइन, आई एम वेरी बैड नाउ। इसलिए जो फैक्ट है फैक्ट है, लेकिन लोग बताते नहीं, क्यों नहीं जा रहे हैं? काम है। व्हाट टाइप ऑफ काम इज देयर? मतलब आई डोंट वांट टू गो, दैट इज द प्रॉब्लम। सो सिमिलरली मैं तो आज कुछ सोच रहा था, किसी भक्त का कुछ इश्यू है, कहना नहीं चाहिए, वो इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए हमको बताइए, तो आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दोज इश्यूज एंड फ्री होके जाना है। अगर किसी का फाइनेंशियल इश्यूज है, विल मेक ए टिकट फॉर देम आल्सो, दैट आई वांट टू डिक्लेयर, तो सो दैट अगर उसी के चलते कोई नहीं जा पा रहा है तो विल टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। मे नॉट बी इन एसी, बट इन सिटिंग में कितना पैसा पड़ता है? बहुत कम है, और इतना भी गर्मी आजकल नहीं है, आराम से जा सकते हैं। पीपल व्हाई पीपल विल नॉट गो? तो दूसरा कुछ इश्यू है तो बताइए पर्सनली, 1 to 1 पिंग मी पर्सनली, सो आई विल ट्राई टू हेल्प इट आउट एज ए सर्विस टू गुरु एंड कृष्णा। प्रभु ने हमको सेवा दिया इसलिए हम बोल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इट इज पीपल अपना अपना है, रास्ता अपना अपना है। लोग वही है प्रॉब्लम है, किसी से सरेंडर नहीं करना चाहते हैं। We don't want to surrender anybody. We want to surrender our ego, partial surrender. Partial surrender is not surrender. Partial Krishna consciousness और Krishna consciousness, part time job नहीं है। This is not Krishna consciousness part time. ये हम बोल रहे हैं फैक्ट, बिकॉज हमारा टीचर बताया था, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं इसको। तो हमको भक्ति में बढ़ने के लिए साल में 1-2 फंक्शन है, 2 या 3 मैक्सिमम फंक्शन है, उसको हम अटेंड नहीं करते हैं। कल भी हम डिस्कस करते हैं, मथुरा धाम नहीं करते हैं, मथुरा बास में मथुरा दूर नहीं जाना है, यहाँ रघुनंदन धाम भी पास में है, खाली 5 घंटा 4 घंटा का जर्नी है हमारे लिए। छुट्टी है फिर भी हम लोग नहीं जाएंगे, तो क्या है? कुछ इश्यू है बताइए, रिजल्व करते हैं।
किसी का घर वाले छोड़ते नहीं है, उसको समझाया जाएगा। वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। लेकिन ये बात उधर से आया जो लोग बोले हैं कमिटमेंट करें, मेरे को बहुत अच्छा लगता है रघुनंदन धाम जाने से। तो हमको तो अच्छा नहीं लगता, आई एम जस्ट टेलिंग, आई एम नॉट इन दैट। मेरे को तो जगन्नाथ धाम जाने से भी अच्छा नहीं लगता है, मैं तो उस पोजीशन में है ही नहीं। मैं आई एम टेलिंग फ्रॉम माय हार्ट, क्योंकि हम इतना नीचे गिरा हुआ आदमी है। लोगों को इतना अच्छा लगता है कोई धाम में जाने से और भगवान का दर्शन करने से। हम तो भाई भाई ड्यूटी है, कोई भक्त बोला है उसीलिए हम जाते हैं यार, मेरा भक्ति थोड़ी है। आई एम जस्ट टेलिंग माय फैक्ट। बट आप जो लोग इतना भक्ति में है वो लोग बोलते हैं हम जाने से इतना अच्छा लगता है भगवान को दर्शन करने से, फिर वो लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हमको समझना कैसे समझेगा, कोई नहीं बोलेगा तो हम कैसे समझेगा? तो दैट्स अ थिंग्स पीपल वांट टू जस्ट क्या पार्ट टाइम कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहेंगे, हम लोग ऐसे ही आधा करेंगे आधा नहीं करेंगे। वैसे होने से कोटि जन्म लगेगा, कोटि कोटि जन्म। इसलिए हिरण्यकशिपु का बात से ही हमको समझ में आता है। हिरण्यकशिपु थ्योरी तो बहुत बोलता है, अरे वो हेल्प यू एप्लीकेबल टू अस, टू मी। इसलिए हिरण्यकशिपु के लिए हम जो है हमारे लिए एप्लीकेबल है। हिरण्यकशिपु बोलता है कि भाई ज्ञान देता है, हिरण्याक्ष मर गया ज्ञान देता है उसका, वो हिरण्याक्ष को वाइफ को, हिरण्याक्ष का उनका मदर को बहुत ज्ञान दिया कि ये जो सूर्यज्ञ ऐसे ऐसे हुआ रहा है। तो इसका क्या हुआ? देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर द डेथ। द सोल, सेम सोल माइग्रेट्स इन डिफरेंट बॉडी स्पेसीज दैट अपीयर एंड डिसअपीयर बाय द कर्म एंड jiva of the jiva by the soul identifies with the body and body relationship। हम लोग बॉडी का साथ में बॉडी का संपर्क को खाली देखते रहते हैं, सोल का नहीं देखते हैं। फिर एज पुलिस एज ए हाउस होल्डर थिंकिंग हिमसेल्फ, ऐसे घर से आया, हम सोच रहे हैं कि मैं ही घर हूँ, मतलब जो घर बनाया है वो मैं ही हूँ, मतलब आई कैन डिटैच फ्रॉम दैट घर, उसी से बात रह रहता है। हम किसी का, हमारा अच्छा कार है, 1 करोड़ या 5 करोड़ का कार होगा, उसमें कार में खर्च लग जाएगा तो हमारा लगता है कि हमारे हाथ से एक हाथ कट गया, वृद्धाश्रम का जैसे 2 हाथ कट गया, हमारा लगता है ऐसे ही 2 हाथ कट गया, क्योंकि हम नॉट अदर्स ऑल्सो, आई एम थिंकिंग अबाउट आवर अटैचमेंट ऑल्सो, माई अटैचमेंट। तो इस टाइप का होता है। हम लोग पुलिस है तो योर लेमेंटेशन इज कॉन्ट्राडिक्टरी, इसलिए ओ फूल्स your lamentation is contradictory, those who are in knowledge of the eternal soul and perishable body don't lament। जो जानते हैं सोल इटर्नल है, बॉडी टेम्पररी है, ये बॉडी के लिए क्यों रो रहे हो? वहां से हंटर देन ये बोलता है, वहां से स्टोरी है, वहां से हंटर कैप्चर्ड ए फीमेल पुलिंग अ बर्ड इन हिज नेट, seeing his wife in danger the female bird lamented inconsolably। एक बार एक हंटर जाल बिछाया था तो ये फीमेल पुलिंग अ बर्ड उसको जाल में गिर गया, इसको देखते हुए उसका वाइफ डेंजर में है तो मेल बर्ड रो रहा है। मीनवाइल द हंटर किल्ड हिम टू, वहीं बैठा हुआ है तो उसको भी पकड़ लिया, वो छोड़ के नहीं जा रहा था। वो पुलिस वुमेन, इवन इफ यू लेमेंट फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स दिस डेड बॉडी विल नॉट कम टू लाइफ, ऐसे वो बोल रहे हैं। जो ये क्यों आप रो रहे हो? while the person within the body has already moved to his journey onwards, in the meantime your own life is running out। आप उसके रोते रोते अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, आपका लाइफ भी खत्म होने वाला है, इसलिए ये कितना ज्ञान दे रहा है। इन द मीन टाइम योर वन लाइफ इज रनिंग आउट, एवरीवन इज स्ट्रक विद वंडर हियरिंग द वॉइस। इसको सुनते हैं जमराज एंड डिसअपीयर्ड एंड सुजग्यास relatives completed the funeral, therefore don't be aggrieved from the death of हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु ये स्टोरी बता रहा है कि हिरण्याक्ष एक सुजग्य बोल के था, उसका राजा बैटल फील्ड में उसका मृत्यु हो गया था, उसका वाइफ लोग डेड बॉडी का ऊपर में रो रहे थे। तो इसका घटना में कैसे वो हुआ ये सब जमराज आए, ये बताए, ये सब ये हो गया। फिर पुलिंग बर्ड का बताया। तो इसीलिए hearing these words हिरण्यकशिपु दिति एंड अदर्स बिकम पेसिफाइड। हिरण्यकशिपु उसको पेसिफाई कर दिया, दिति एंड अदर्स को। इवन डिमॉन्स नो फिलोसफी, यहाँ पे बोल रहे हैं इवन डिमॉन जो राक्षस भी फिलोसफी जानते हैं, बट दे डोंट ऑलवेज अप्लाई इट इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ ड्यू टू फॉल्स अटैचमेंट और लैक ऑफ पाइटी। दो चीज है, हमारा अटैचमेंट होगा, नहीं तो हमारा पाइटी नहीं, पाइटी में पुण्य कर्म नहीं है। जब तक पुण्य नहीं होगा तो भगवान का नाम, भगवान का सेवा दुर्भाव नहीं कर सकते ना। तो तेसम जैसम तो अंतर्गत पापों जननम पुण्य कर्मणम ते द्वंद्व अनिर्मुक्त भजन मां दृढ़ व्रता। तो हमारा जो पाप खत्म नहीं है, पुण्य नहीं बढ़ा, तो हम भजन दृढ़ भाव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए करना पड़ेगा क्या? पाप को खत्म करना पड़ेगा, उसके पुण्य बढ़ाना पड़ेगा, सेवा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पुलिंग बर्ड का केस में ऐसे हुआ, ये एक स्टोरी है। उसी टाइप का एक
हंटर एक जाल बिछाया था, तो वो देखा कि कुछ बार्ड्स और जाल में डाल देता है, क्या ग्रेन्स डाल देता है, उसमें जाके कुछ बाढ़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसको पता चल गया, ये पुलिंग बाढ़ को वो पता चल गया, बोला देखो एक हंटर आता है उस पेड़ का नीचे में और वहां पे जाल बिछाता है, जाल का अंदर में ग्रेन्स को डालता है, सस्यों को डालता है, कुछ बाढ़ जाते हैं वो सस्यों को खाने के लिए, तो उसी में जाल में गिर जाते हैं, वो फंस जाते हैं जाल में, इसलिए वहां पे नहीं जाना। कौन बोल रहा है? मेल बाढ़ उसका फीमेल बाढ़ को और बच्चे को बता रहा है, सबको ज्ञान दे रहा है। तो बोल रहा शिकारी आएगा, जाल, ऐसे ऐसे स्टोरी है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और उसमें हम लोग नहीं जाना है, ऐसे बोलता है, कोई नहीं जाना है, जाने से जाल में गिर जाएगा, जाल में फंस जाएगा, वो हमको पकड़ लेगा, मार देगा, इसलिए ज्ञान दिया। लेकिन जब वो शिकारी आया उसके बाद में जाल बिछा दिया, दाना भी डाल दिया, फिर ये फीमेल बार्ड उसका जो है वो सुना है, लेकिन उसका जो खाने के लिए आग्रह था वो लालसा छोड़ नहीं पाया, आउट ऑफ ग्रिड चला गया, फिर गिर गई वहीं पे। अभी क्या है, ये भी गा रहा है, जो मेल बार्ड गा रहा है, शिकारी आएगा, तब तो गा ही रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में वो दाना डालेगा, हम नहीं जाएगा, उसमें जाने से गिर जाएगा और उसमें पकड़ लेगा, ऐसे बोल रहा है। फिर वो देखा फीमेल बार्ड भी गिर गया है, ये भी खुद जाके गिर जाता है। ये है एक्चुअली स्टोरी है। तो ये हमारा भी स्टोरी ऐसे तोता जैसे बोलते रहते हैं, ऐसा है ऐसे, शरीर अच्छे, शरीर टेम्पररी है, सोल परमानेंट है, सोल के लिए सब कुछ करना चाहिए, भगवान हमारा इतना लाइफ दिया, भगवान हमको सब कुछ करता है, भगवान सब सप्लाई करता है, हमारा कोई पावर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम भगवान के पास में जाना चाहिए, लेकिन जाएगा नहीं। तो हम लोग का ऐसे ही स्टोरी है। जो स्टोरी ये कुलिंग बार्ड का है या जो भी स्टोरी है वो हिरण्यकशिपु का है, सुजज्ञों का है, सारे का सेम स्टोरी है। हम लोग वैसे ही करते रहेगा, समय बीता जाएगा, उसका बाद में नौकरी खत्म हो जाएगा और उसके बाद में हमारा बुढ़ापा आ जाएगा, कभी नौकरी खत्म होने का पहले एक्सीडेंट होकर लाइफ चला जाएगा, फिर भी हम खुद उतना सुधरेगा नहीं जितना सुधरना चाहिए। हमारा इस टाइप का ज्ञान हम लोग देते रहेगा, हर डे क्लास हम ज्ञान, मैं भी ज्ञान दे रहा हूँ, मतलब जो सुना उसी को ज्ञान दे रहा हूँ, उसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए इम्प्लीमेंट करना है। आज का स्टोरी बहुत अच्छा है, कॉपी कैट, बागुंदी बागुंदी, ये पुलिंग बार्ड का, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, ये स्टोरी बहुत अच्छा है। और एक जैकल एंड जो स्टोरी था वल्चर, ये बहुत अच्छा है, बॉडीली कॉन्सेप्ट ज्ञान देने के लिए बहुत कुछ लोग जुक्ति करते हैं या बताते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जब काम में आएगा तो हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए दायी कौन है? भगवान नहीं, हम। आई एम माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई वन फ्यूचर, माई वन, हमारा जो साम्राज्य है एम्पायर का आर्किटेक्ट मैं ही हूँ। हम कैसे इसको बनाएगा वो हमारा ऊपर डिपेंड करता है। हम थे हेल्प करने के लिए, बट if I want to take help, then help is always extended, but nobody wants to take help, then nobody give the help also. हेल्प देते रहते हैं लेकिन लोग एक्सटेंड नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए भी जैसे मैं बोला जाने के लिए कुछ हेल्प है कि कल किसी को मैं बोला भाई वो पहले हाँ राजीव आज उसको फॉलोअप करना है, पितानी माता जी का बेटा है, बोला भाई तुम्हारा छुट्टी प्रॉब्लम है, तुम्हारा बॉस को मैं बोल दूंगा तो 2 दिन छुट्टी ले लो, 3 दिन जो भी चाहिए, आई विल टेल हिम, तो तुम्हारा पैसा नहीं कटेगा लेकिन छुट्टी मिल जाएगा। तो बोला हाँ मैं जाऊंगा। तो अच्छा इसी लाइफ का कोई किसी का इश्यू है तो बताइए, एज फार एज पॉसिबल आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट एज ए सर्विस टू प्रभु जी हमको बताया। हरे कृष्णा। और जो दूसरा भक्त बार बार जिनका बारे डिस्कस किया सब कोई जानते हो, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनको कोई फोन फान करता है? नहीं करते, हम भी नहीं किया, तो ये हरे कृष्ण। आज क्या संख्या कम हो गया, ओनली 8 एक्सक्लूडिंग माई सेल्फ। ओके, अभी चित्ता प्रभु लेफ्ट हो गया। चित्ता प्रभु, अच्छा पद्मावती माता जी आपका प्लान हो गया? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम।
भगवान समस्तों कल मेरा हो गया है, टिकट भी हो गया है। कल जो दिया हूँ सुनाराम किया, कर दिया टिकट। 15 मॉर्निंग को इस्पात में मिल गया है। और रिटर्न मंडे को है। मंडे को वही इस्पात में ही रिटर्न करना है। तो बहुत धन्यवाद है। मेरा जैसे इच्छा थिले उपाय मिले। If there is a will, there is a way. If we don't want to do anything, nobody can help it out. So help will be always be extended by Lord or His devotees. Devotees मैं भगवान का भक्त के माध्यम में हेल्प देते रहते हैं या किसी के माध्यम में हेल्प देते हैं, बट हम लोग उसको हेल्प को लेना चाहने से मिलेगा। तो हम लोग अगर हेल्प लेना नहीं चाहेगा तो nobody can these things. Okay, thank you. आज का क्लास मैं सोच लिया, लेकिन आपका कृपा मिला। थोड़ा सा सोच लिया था कि हाँ हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये तो टाइम है फिर भी, लेकिन मैं तो इतना दूर में हो सकती थी। लेकिन आप उसी सही टाइम में आप कॉल किए और आपका कृपा मिला, वो हो गया प्लान। कृपा तो भगवान का है, भक्त का कृपा है। हमारा क्या कृपा है, हम तो कृपा के लिए वेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो हमारा सेवा है। मैं आपको अभी नहीं, उस दिन 2 दिन पहले भी फोन किया था, इसीलिए फिर आप एक बार बिजी थे, रिंग बैक किए थे तो मैं फिर बिजी रह गया। बट एट दैट टाइम वही मैं बोल रहा था जे ऑलरेडी टोल्ड ना जे मायापुर के लिए शायद रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे भी छुट्टी है तो यहाँ पे सब कोई जा रहे हैं, तो इसलिए मैं उस टाइम बोल रहा है। तो फिर मैं देखा था उस टाइम में टिकट मतलब ऑलमोस्ट अवेलेबल टाइप का था, इसलिए हम लोग इसको कर सकते हैं। एनीवे हम लोग क्या है ना, हम लोग जाने से हमको खुशी लगा नहीं लगा वो बड़ा नहीं, हम इसलिए जाना चाहते हैं कि हम भाई गुरु कृष्ण को खुश लगेगा, प्रभु को खुशी होगा और राम जी को खुशी होगा, वही है। हम तो राम जी को खुशी को नहीं कर सकते, तो बट हम लोग का वही है, हम लोग थोड़ा सा जाएंगे तो कुछ सेवा हो नहीं हो। जैसे अभी कुछ दिन प्रभु काल में बात किया, फिर शाम को बहुत दिन का बाद में, क्योंकि सबका कब का प्लान है इसलिए फिर फोन किया। तो प्रभु कॉल वाज ऑन वेटिंग, बट इमीडिएटली प्रभु वो कॉल को काट के मेरे को फोन बैक किया। तो फिर शाम को फिर मैं बताया कि ये लोग जा रहे हैं। तो जाने का पहले अरेंजमेंट की बोलना पड़ता है, कौन सा कौन है, क्या है, कितना है रूम है, किसी बोलना पड़ेगा। तो इसलिए पहले पूरे प्रभु बोले थे देयर आर सम सर्विसेज लाइक 14 तारीख को शाम को एम्स कॉलेज में प्रोग्राम है, तो आशुतोष प्रभु अगर जा रहे हैं ट्राई टू अटेंड दैट प्रोग्राम। जन्माष्टमी का 700 वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, हम लास्ट टाइम अटेंड किए थे। 700 स्टूडेंट का प्रोग्राम होता है वहाँ पे एम्स कॉलेज में, इवनिंग को है। तो फिर 15 तारीख को दिन में वहाँ पे प्रोग्राम है इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो फिर शाम को MCL में है और मेडिकल कॉलेज में भी है शाम को। तो 15 तारीख को 3 प्रोग्राम है। फिर 16 का तो बाहर लोगों का भी ये है, शाम को जन्माष्टमी है एंड ऑल दिस थिंग्स। 17 को तो दोपहर में प्रभुपाद का अपीयरेंस डे है, शाम को नंदोत्सव है। तो फुल्ली पैक्ड प्रोग्राम्स एंड 3 दिन का प्रोग्राम बहुत फुल्ली पैक्ड है। हम लोग वो ये मैं मेरा रियलाइजेशन भी बता रहा हूँ, हम लोग बहुत कुछ बड़ा चीज करना नहीं पड़ेगा भगवान का भक्त को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि प्रभु हमको एक बार बोल दिया। हम ही उठाए थे बात कि 3 दिन छुट्टी है, तो डिस्कस हो रहा था। लेकिन प्रभु हमको बोला कि अभी से बोल दिए लोगों को, सबको टिकट 2 बार मेरे को बोला टिकट रिटर्न टिकट कर लीजिए, सो दैट जाए नहीं जाए बाई चांस नहीं होने से कैंसिल कर देंगे, बट लेट देम डू दिस टिकट। लास्ट मोमेंट में टिकट का प्रॉब्लम होता है एंड ऑल दिस थिंग्स, इसलिए मैं सबको बताया था। बट एनीवे तो हम लोग क्या है, हम लोग कल जो बात किया, आई एम श्योर दैट सो मेनी पर्सन डिवोटीज आर गोइंग, तो प्रभु जरूर खुश होंगे, क्योंकि वो कुछ हमको बोला था। मैं थोड़ा सा बार बार लोगों को पीछे बोल के ही बोल रहा हूँ, तो मैं तो कुछ पर्सनली नहीं किया, लेकिन उनको जरूर खुशी लगेगा कि क्या है ना, भगवान का फंक्शन में भक्त लोग आए एंड हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ सेवा करें, मतलब प्रभु उसका चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोग जाके क्या करना है, प्रभु बार बार बोला आप आइए रहिए प्रसाद पाइए फिर जाइए, मतलब आपको कुछ करना नहीं है। तो हम लोग आपके लिए प्रसाद करेगा, आप लोग नहीं रहेगा तो कौन प्रसाद ये करेगा। तो इसीलिए हम लोग को बोलते हैं, तो हम लोग जाना चाहिए, भक्त को दर्शन करना चाहिए, भगवान को दर्शन होना चाहिए, धाम में वास करना चाहिए।
बीच बीच में धाम वास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल में मैं डिस्कस कर रहा था भक्ति का जो टंग है उसमें तो 5 बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट को भी बोला गया है, चेतना को बोला नाम धाम डीटी डिवोटी भागवतम, ये 5 याद रखिए, इजी है। नाम धाम डीटी डिवोटी भागवतम, हरि नाम करो चंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम नाम हरे हरे। धाम में वास करो, बीच बीच में धाम में जाना है। वही युधिष्ठिर महाराज को बोलेंगे नारद मुनि कि जो गारस्य है वो कैसे उद्धार पाएगा। 2 चीज है, वो बोला भक्त लोग को बुलाएगा घर में और उनसे श्रवण करेगा, ये आएगा 7 कंटो में भी है इसमें, और बीच बीच में टाइम मिलेगा तो जाके भक्त संग में धाम में वास करेगा, श्रवण करेगा। ये 2 चीज भक्त के क्या मैंने गारस्य के लिए इंपॉर्टेंट बोला है। तो ये नाम धाम डीटी डिवोटी, डीटी मान विग्रह सेवा या भगवान का फोटो अलग के भी सेवा कर सकते हैं, तो दैट इज थिंग। डिवोटी एसोसिएशन, डिवोटी का सेवा, सेवा डिवोटी का सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। देन भागवतम, इस भागवतम श्रवण करना, पढ़ना, गीता हो भागवत भगवान का रिलेटेड जो है उसको श्रवण करना, ये 5 चीज इंपॉर्टेंट। देन तुलसी सेवा, तो ये 5 चीज को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में धाम नहीं वास करते हैं। हम लोग साल में एटलीस्ट 4 बार 5 बार तो कोई धाम में जाना चाहिए। 5 बार 6 बार, कुछ धाम जो नजदीक में है कुछ बार जा सकते हैं, कोई दूर में साल में 1 बार जा सकते हैं। हम लोग क्यों नहीं जाते हैं, आई डोंट नो। मतलब ये सम पीपल आर हैविंग जेन्युइन सम इशू, बट इसको क्रॉस कर सकते हैं। जेन्युइन इशू मतलब हम इफ डिजायर इज देयर देन वी कैन डिजर्व इज देयर, देन सैंक्शन, लॉर्ड विल सैंक्शन। सारे चीज को सैंक्शन भगवान करेंगे। जैसे आप बोले कि थोड़ा सा मैं सोचा तो भगवान का कृपा आ गया, वही है। हम लोग सोचते नहीं है। हम लोग देखिए, हम जा पाएगा नहीं जा पाएगा अलग बात है, लेकिन सोचना चाहिए मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मैं प्रभु बोले हैं, भक्त लोग बोले हैं, उनका गाइडेंस में हम लोग है, उनको क्या खुशी है वही करना चाहिए, वही करना चाहिए, वो करना चाहिए। भगवान सारे व्यवस्था करेंगे, सारे। आप लोग देख लीजिए, हम लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। अभी सचदेव प्रभु भी जा रहे हैं, उनको लास्ट टाइम एक बार गए थे शायद, उनको बहुत अच्छा लगा, तो नाउ ही इज आल्सो गोइंग। तो लोग जा ही रहे हैं, मैक्सिमम लोग तो जा ही रहे हैं, और जो छूट जा रहे हैं 1-2 उनको भी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर कुछ इशू है तो मेरे को पर्सनली बात करिए, आई वांट टू टॉक टू देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम इन सेपरेट, अलग से, एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट एज ए सर्विस। अगर कुछ है मैं ट्राई करूंगा, सेवा करिए, क्योंकि मेरा यही सेवा है। प्रभु ने मेरे को ये सेवा दिया, मैं इसको सेवा ही से सोच रहा हूँ कि हम अगर जितना मात्रा में जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, प्रभु से भी गाइडेंस हम लोग लेते हैं, तो वहाँ पहुंचेंगे, राम जी का पास में दर्शन करेंगे, जन्माष्टमी नंदोत्सव गोपाल जी का वहाँ पे अटेंड करेंगे। तो नंदोत्सव का बाद नेक्स्ट डे प्रभुपाद का अपीयरेंस है, जो कि शिला प्रभुपाद यहाँ पे अब रहेंगे तो कहाँ करेंगे, पहले कटक मतलब शिला प्रभुपाद हमारे लिए क्या है, उनका आविर्भाव तिथि है, उसको हम अटेंड नहीं करेंगे। उसी नंदोत्सव है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट चीज है, तो हम लोग दोनों 2-3 इम्पोर्टेंट चीज है उसको अटेंड ही नहीं करेंगे। हम बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि प्रभुपाद का आविर्भाव तिथि कब है। हम भक्ति लाइन में प्रभुपाद का सिस्टम में आया, अगर जानते भी है उनका अटेंड भी नहीं करते हम लोग। अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो कोई नहीं जा रहा है, देन ये हमारे टीचर बोल रहे थे, देन ही शुड आल्सो ऑब्जर्व हिज जन्माष्टमी एट हिज होम, जहाँ रहते हैं, और नंदोत्सव नहीं है तो प्रभुपाद का अपीयरेंस डे उसको पालन करना पड़ेगा घर में। दिस इज द थिंग्स आई विल रिकमेंड, बिकॉज यही है, तो लोगों को बुलाओ घर में। आप कोई इशू में नहीं जा पा रहे, घर में बुलाए, जन्माष्टमी करिए, बाहर लोगों को बुलाइए, और बाहर लोगों को भी पता होना चाहिए जन्माष्टमी क्या होता है। हम भगवान के लिए, ये तो हम घर में नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। घर में नहीं तो जो जाएगा नहीं, घर में करो, घर में जन्माष्टमी का पालन करो। नेक्स्ट डे प्रभुपाद का छुट्टी भी है, संडे है, नंदोत्सव है, तो नंदोत्सव हम पालन नहीं कर पाएंगे, तो प्रभुपाद घर दोपहर में प्रभुपाद का ये है, तो उसी दिन आगे, उसी दिन नहीं तो लोगों को बुला के प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो दैट इज ऑन नंदोत्सव, एंड दैट इज आल्सो इन ऑन द ईव ऑफ जन्माष्टमी, एंड आल्सो इन द ईव ऑफ श्रील प्रभुपाद अपीयरेंस डे। प्रभुपाद से हम लोग इतना सब प्राप्त होते हैं, और प्रभुपाद से हम कुछ देते नहीं है। देते मतलब क्या है, हम क्या है, प्रकाश करना चाहिए, हम दूसरा को पहुंचाना चाहिए प्रभुपाद को। प्रभुपाद का मिशन है ये, प्रभुपाद का जो थिंकिंग फिलोसफी, इसलिए प्रभुपाद जो लाया है, कृष्ण जो दिया है, जितना भी दिया, उसी को प्रचार करना है। तो हम लोग अगर प्रभुपाद के लिए हमारा ग्रेटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करेगा, नॉट ओनली बाई थ्योरेटिकली वर्ड बट बाई एक्शन ऑल्सो। तो हम लोग तन मन धन ये लगा के भगवान का भक्त का, प्रभुपाद जैसे है उनका सेवा करना चाहिए।
और उनका आविर्भाव तिथि में हम लोग को कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए। इज इट क्लियर? दिस इज आई एम रिकमेंडिंग, बट जनरली हम नहीं, यही रिकमेंडेशन है हमारा सिस्टम का। किस्कन लाइन में यही रिकमेंडेशन होता है, आइदर यू अटेंड ग्रुपली और somewhere you go and attend, or otherwise you try to distribute these things mercy by doing something। तो जिसको भी जो पसंद है कहिए, दोनों से किसी भी कर सकता है। हरे कृष्ण। श्रोता प्रभु। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज क्लासटा सर बहुत भल लगिला। आपण केमती माने नाम धाम डेटी डिभूटी भागवतम पर आम अधिक गुरुत्व देवा उचित। आमर एक्चुअली सर डिजायर रहिले सेटा ऑटोमेटिक हम, किंतु आम जेहेतु ठीक ठाक करूँ तेणु आम सफरिंग होचु। तेणु भगवान तो सब व्यवस्था करेंगे। तेणु माने एक्चुअली जो माने अपॉर्चुनिटी आसूँ जन्माष्टमी नंदोत्सव जहाँ भी प्रभुपादंकर कथा आपन कहले, अपीयरेंस डे मुझे जान नी सर। एवं आम भी अपीयरेंस डे आमको ये पालन करा पड़ो। तेणु आम एक्चुअली एक्सप्रेस करिया कथा ग्रेटिट्यूड टू प्रभुपाद। से केते कष्ट करिकी आमको ये जो भावधारार आनिचंती। तेणु आम निश्चित भाव में सर चेष्टा जारी रखा। आमर प्रार्थना प्रयास रहिबो। आउ गुरु कृष्ण को कृपार निश्चित भाव में सब संभव होगा। आउ डिभूटी एसोसिएशन सब टाइम आवश्यकता रही। आम जिते जहाँ सारा आप सेयार करुँच आम पिला भी कहूँ, चेष्टा जारी रखीचु। ता भर आम हम बोली आशा करुँ। कि सर आम पूरा तो बिलो लेवल आमर एतटा इफेक्चुएट होनी। किंतु आपन जे कथा कहते इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तेणु भगवान ही व्यवस्था करेंगे। तेणु मु मोर चला पथर मुझे आर्किटेक्ट मुझे जमीती ड्राइविंग फोर्स देवी सेटा सेमि चलो। तो से आमको सिंसियर हाँ पड़ो, ओबीडिएंट भी हाँ पड़ो। सो थैंक यू सर। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। Thank you. We should know this आविर्भाव तिथि of Srila Prabhupada. These are very बहुत इम्पोर्टेंट तिथि, हम लोग को वो बताना चाहिए। जब हम भक्ति में आए हैं, तो जिसका माध्यम में भक्ति में आए उनका बर्थडे पता नहीं है, तो इट इज वेरी नॉट गुड एक्चुअली। तो कहना नहीं चाहिए। हम शुरू में ऐसे ही 2 दिन गया, उसके बाद में अमय प्रभु का बर्थडे कब है इसको पता करना था। उनको तो पूछने से नहीं होगा, तो इसलिए मैं जाके संजीव प्रभु हमारे माता जी को जाके एक बार पूछा कि माता जी प्रभु का बर्थडे कब है। देन वो मेरे को बताए थे अपरा एकादशी। तो मैं तब से सडनली एक दिन अपरा एकादशी आएगा, तो मैं पहले नहीं बताया। तो प्रभु हम लोग एक ये करेंगे, पालन करेंगे। तो उस टाइम का बाद में हम एक बार तो ऐसे हुआ कि प्रभु बुर्ला में थे, तो एकादशी था। तो मैं बोला प्रभु हम लोग का आपका कल द्वादशी में पालन होगा तिथि। तो हम जाके मॉर्निंग में पहुंच जाए, फिर अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं। तो जाके हम लोग 9 बजे का प्रसाद में रात में निकला, कुछ काम था बोल के, फिर मॉर्निंग में पहुंचा। जाके वहाँ पे 9 बजे जो प्रसाद होता है, तो हम लोग उसमें जाके ये किया, पार्टिसिपेट किए। तो मेरा कहने का मतलब है, हम किसी को प्यार करते हैं तो प्यार नहीं हुआ तो प्यार करने का तरीका बताना चाहिए। हम लोग प्यार करते हैं, मेरा तो प्यार होता नहीं है, लेकिन हम वही सोच रहे हैं किसी का माध्यम में हमको वो प्यार तो कर लेगा। मैं तो प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हम कुछ इस तरह का काम कर दें जो कि आउट ऑफ प्यार नहीं है, फिर भी कुछ आउट ऑफ ड्यूटी कर दें, तो हो सकता है वो हमको प्यार कर दे। तो उनका प्यार मिलने से हमारा भी प्यार भगवान के लिए आ जाएगा। तो इसलिए मैं ये फिलोसफी में प्रैक्टिकली मैं ये सोचता हूँ। मेरा होता नहीं प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसको फिलोसफी को ट्राई करते हैं। आप लोग का अंदर में तो इतना बहुत अच्छा है प्यार भगवान के लिए, भक्त के लिए, हमारा तो है ही नहीं। तो देन इस टाइप का फिलोसफी हम लोग जब करते हैं ना, तब उसी से भगवान का भक्त का कृपा मिलता है। और हम लोग कृपा को डिमांड नहीं कर सकते हैं, प्रभु जी हमको कृपा करिए। इस टाइप का कृपा तो भगवान का है। हमारे प्रभु हमको कितना बार बोला है, कृपा भगवान का जो आता है ना भक्त माध्यम में, आप कृपा चाहने से रुक नहीं सकते हो और कृपा को चाहने से डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते हो। अनलेस एंटिल यू फॉलो दी तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया, ये प्रोसेस है। तो हम लोग
हमारे घर में एक बार प्रभु जी बस बैठे थे, हम मेरे बेटा कुछ डिस्कशन हो रहा था, उसी में ये बात भी बताया। तो यू हैव टू रेस्पेक्ट। वो बोला हो, अरे बेटा कुछ बोल दिया मेरे को, मैं कुछ बोला तो मेरे पर गुस्सा हो गया। तो प्रभु ने बोले हाउ टू डेयर टू स्पीक लाइक दिस, आप यू कैन नॉट स्पीक लाइक दिस। एंड उनको बताया, फिर बोला नहीं देखिए कृपा ऐसे नहीं आता, पिता चाहने से भी बेटा को कृपा नहीं दे सकते। हम पहले भी डिस्कस किया, तो कृपा पाने के लिए भगवान का कृपा है, वो आता है, उसके लिए एक विधि है, तो सरेंडर करना पड़ेगा एंड उसका बात को मानना पड़ेगा। उसका बात को मानने से ऑटोमेटिकली कृपा फ्लो डाउन हो जाएगा, वो कोई नहीं रुकेगा। लेकिन हम बोलेगा सरेंडर है तो बात नहीं मानेगा, इसका मतलब क्या है? ये कॉन्ट्रेक्टरी है। सरेंडर कहाँ से होता है? सरेंडर होना तो पहले बात है कि सरेंडर है तो उसके बात को मानना पड़ेगा ना, हम इससे सरेंडर है। लेकिन हम सरेंडर नहीं है, इसका मतलब सरेंडर है लेकिन बात नहीं मानते, तो कृपा कैसे आएगा? सिमिलरली हम लोग जो है वो बात को सीरियसली मानना पड़ेगा। तो ये हमारा कहने का मतलब है। एनीवे, सदैव प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत टू ऑल डिवोटी। प्रभु हम तो आ रहा हूँ प्रभु। और वही आज का जो टॉपिक है वही हिरण्यकशिप का जो टॉपिक था, वही हिरण्यकशिप और प्रहलाद में वही डिफरेंस है। जब प्रहलाद का जब जन्म होना था तो उनका मदर हिरण्यकशिप मर गया था, तो हिरण्यकशिप को उन्होंने उसका वाइफ बोला कि आपका बच्चे होने वाला है, आप मत जाइए, किस लिए जा रहे हो? उनको शुक्राचार्य ने मोटिवेट कर रहे थे कि तपस्या करने के लिए। तो उन्होंने ये बोला, वो लर्नर पर्सन है, कि मेरे को एक एग्जाम्पल सेट करना है, नहीं तो हमारा साम्राज्य जो है वो भयभीत है और डर के रहेंगे। तो उन्होंने उनको बच्चे को केयर नहीं किया, वो चले गए। बाकी इंद्र ने उनको अपहरण करके उनका जो नर्चर हुआ वो एक साधु के संगत में हुआ, आश्रम में हुआ प्रहलाद, तो वो डिवोटी बन गए। और ये लर्नर पर्सन होके भी संगत और उसका जो शुक्राचार्य के ये है उसके वजह से वो खराब हुआ है। तो हमारा वही है, हम लोग डेली जो ये होता है, तो हमारा संस्पर्श में बहुत सारे संगत आते हैं, हम किस तरह संगत लेंगे तो उससे हमारा नर्चर होगा और भक्ति मार्ग, वो मेरा एक रियलाइजेशन है। हरे कृष्णा। थैंक यू। आशीष प्रभु। हरे कृष्णा, आशीष प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम टू ऑल डिवोटीज, गुरुज एंड वैष्णवज। तो जा रहे हैं हम। आज तो थोड़ा बारिश शुरू हो गया, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं। कल सुबह पहुंचने का ये है, कोशिश करता हूँ टाइम पे। बस में जाएंगे, शायद बस जाएंगे। और आज का जो क्लास में जो बताया गया वो बहुत ही अच्छी बात बताया गया। हम तो नहीं कर पा रहे हैं उसको, फिर भी कोशिश करूंगी। बहुत अच्छी बात है। जैसे हिरण्यकशिप के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत कुछ उसका हमारा ज्ञान ऐसा ही है। हम थ्योरेटिकली बहुत कुछ समझ लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जीरो। तो इसीलिए हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है ना, गुरु के सानिध्य में होते हुए शिष्य को पढ़ाई करना चाहिए। तो वही बात है, आप जो बताते हैं, तो ने बताया है कि आश्रम में रह के, गुरु के सानिध्य में, भक्ति के संग में रह के जो काम किया जाएगा तो थोड़ा हमारा कुछ ये होगा। हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो नालायक हैं, लेकिन फिर वो जो वहाँ जो भक्त हैं वो थोड़ा और हमसे ऊंचे स्तर का है, तो उन्हीं का संगत मिल जाए, तो उन्हीं के विशिष्ट, उन्हीं का थोड़ा आशीर्वाद मिल जाए, तो कुछ मिल जाए, तो हमारा थोड़ा कुछ आगे बढ़ जाएगा। इसलिए भक्त का संग गुरु के लिए सही बात है, तो उसी के लिए कोशिश करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाए हैं। बहुत कुछ और भी लोग हैं जो करते हैं, कर रहे हैं, उनको भगवान का वैष्णव की कृपा मिलेगा। तो फिर भी कोशिश जारी रहेगी। तो यही बात है, जाते देखते हैं क्या तो इसका सकता है।
थैंक यू। भक्ति में जो है भक्त कैसे बढ़ता है, दूसरा का जो एसोसिएशन से शुद्ध भक्त का कृपा से बढ़ता है। तो उसमें हम लोग जैसे बोलते हैं कि एक मछली उसका बच्चा को हम पहले भी डिस्कस किए थे, तो इसमें है एक मछली उसका बच्चा को कैसे बढ़ाता है। मछली उसका बच्चा को कैसे बढ़ाता है, तो अपने ये सिद्ध होगा, खुद ठीक उसके बारे में ये करता है, दर्शन करते हुए। दर्शन करते हुए 3 जीविका हम डिस्कस किया, गीता में है ऑलरेडी, परपोर्ट में महाराज भी बोलते हैं। तो दर्शन करते हुए वो बढ़ाते हैं। मछली उसका बच्चे को बढ़ाता कैसे, दर्शन करते हुए। कुर्मो उसका बच्चा को पानी में रहता है, टॉर्टोइज ऊपर में अंडा देता है, उसको फुटाता है कैसे, चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए। उसका स्मरण करेगा वो बढ़ जाएगा। मतलब उसका जिस अंडा को स्मरण नहीं करेगा, भूल गया, सपोज 10 अंडा दिया, एक अंडा को भूल गया स्मरण करने के लिए, वो डेली स्मरण करता है, तो 9 अंडा को स्मरण किया, एक को भूल गया है, तो वो अंडा फूटेगा नहीं कछुआ का। अब समझ लो, हम लोग गए थे अभी, हमारा सीएमडी आए तो हम लोग गए थे कछुआ का कैसे अंडा, वो समुद्र का या नदी का, ऋषिकुल नदी का ये में तो बालू में वो देता है, को फुटाता है। एंड पक्षी है उसका बच्चा कैसे बढ़ाता है, स्पर्श माध्यम, स्पर्श का माध्यम, ये 3 याद रख लीजिए। उसका बच्चा को स्पर्श करते हुए छूते हुए बढ़ाता है। खाता पीता कोई पे लिखा नहीं है, खाता पीता ठीक है, खाता रहने से बढ़ेगा ऐसे, लेकिन नहीं हम लोग खिला देगा बढ़ जाएगा ऐसा नहीं, तो खिला दिया ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक्चुअली इस टाइप का बढ़ता है बोल के लिखा। और एक भक्त सीनियर भक्त शुद्ध भक्त अगर है, दूसरा भक्त को बढ़ाएगा उसका बच्चा जिससे है, वो कैसे बढ़ाता है मालूम है, इसी तीनों का कॉम्बिनेशन से बढ़ाता है। उसका पास में 3 चीज है, ये तो एक जीव का पास में एक चीज है बढ़ाता है, उनका पास में वो भक्त का पास में तीनों चीज है। वो होगा और उसको दर्शन करता है। हम गया कोई भक्त, हम सीनियर भक्त है, गुरुदेव हमको दर्शन किया है, वो दर्शन इसलिए हमारा कुछ कहना नहीं चाहिए। मेरा प्लान अलग था, मैं वृंदावन के लिए पूरा टाइम पूरा जाना है, दशहरा में लिए टिकट फिकट सब कर लिया, वहां से भी जाना था, इन लोग बोला था, फिर वहां पे नाथ द्वार मेरा भाई बोला था वहां जो जाएंगे लोग, वहां पे भी टिकट फिकट जाने आने का सब कुछ हो चुका है। मेरा जाने का यहाँ से टिकट किसी का नहीं हो रहा था, मेरा 2 टिकट ऐसी टूटा, में वाइफ का हो गया भुवनेश्वर से, दूसरा का नहीं हुआ, दूसरा ट्रेन में। मेरा रिटर्न का मेरा दिल्ली से 2 फ्लाइट का टिकट है। उसका बाद में फिर मेरा चेंज किया प्लान, नहीं इधर से नहीं होगा, तो फिर हम टाइम को चेंज हुआ, फिर मेरा 2 टिकट है यहाँ से दिल्ली का डायरेक्ट टिकट है, फिर रिटर्निंग का वो बोला जयपुर से हम जाएंगे, जयपुर से हमारा टिकट डायरेक्ट 2 टिकट भुवनेश्वर का उस दिन है 6 तारीख का। इसी टाइप का मेरा अभी टिकट हुआ है, दोनों का हस्बैंड रहेगा, 5-6 टिकट पड़ा हुआ है करके। बट मेरा गुरु महाराज लिखा, मैं जो लिखा मैं गुरु महाराज लिखा है, तो मेरा वाइफ बोला अरे यार हम नहीं जाएंगे इस बार, प्रभु लोग का साथ में जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, इस बार जाएंगे, आप जाना है तो जाओ, वहाँ नहीं जाओ। अच्छा म्यूट कर दीजिए आशीष प्रभु, आपका म्यूट नहीं है। तो उसका बाद में वो बोला कि ठीक है, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने मेरे को लिखा, हाँ आपका जो चल रहा है ठीक है, एग्जाम्पल जो भी है लिखा, उसका बाद में लिखा will I see you and your wife at श्रीलंका यात्रा, क्वेश्चन। मेरा तब से दिमाग में आया, मैं तो जाने के लिए सोच रहा था 90% है, लेकिन मेरे को तो जाना है। फिर मेरे वाइफ को बताया, वाइफ तो मना कर रही थी, बोल रहे थे नेक्स्ट ईयर तो हमको थोड़ा सा मेरे सिस्टर का पास में जाना चाहिए, अभी तो कभी नहीं गया, वो नेदरलैंड जाना है, बेटा का एग्जाम खत्म होने से वो पैसा उसके लिए चाहिए एंड ऑल दी थिंग्स उसको रखना है, अभी क्यों पैसा खर्च करने, श्रीलंका जाएगा बस पैसा खर्च होगा, बहुत सारा डिवोटी जा ही नहीं रहे इस बार। तो लेकिन मेरे को एक लाइन जो है ना, मेरे को लगा, मेरे को तो पता था कि गुरु महाराज को दर्शन करना चाहिए, एंड आई वाज थिंकिंग इफ यू आर नॉट गोइंग आई विल गो वृंदावन अलोंग विथ यू आल्सो, एंड आफ्टर कमिंग आई विल गो टू श्रीलंका। ऐसा सोच रहा था, फाइनल नहीं किया था, बट दैट इज इन माय हार्ट। गुरु महाराज एक लाइन लिख दिया, विल आई सी यू एंड योर वाइफ एट श्रीलंका यात्रा, तो मेरी वाइफ का पीछे पड़ गया, देखो गुरु महाराज लिखा है, मेरा खाली नहीं आपका बारे में भी लिखा है, पूछ रहा है तो जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो फिर वो बेटा को पूछा, तो बेटा बोला ठीक है, अब तो यहाँ पे कोई बाहर नहीं गया है, इस बार जाओ, ठीक है वहां जाने से बेटर है, इस टाइप का बोला। देन सी चेंज, देन मैं
कल मेरा ट्यूजडे है ना, कल मैं जाने आने का सारे टिकट पिक किया अभी, ये श्रीलंका का, तो जाने आने का ये सब किया है। मेरा पास में पैसा थोड़ा कम हो रहा था, फिर मैं वाइफ को बोला आपको थोड़ा दे दो, मैं बाद आपको देता हूँ, बुक करता हूँ टिकट। तो मेरा कहने का मतलब है मेरा और सारे टिकट अभी पड़ा हुआ है, आई विल कैंसिल इट और समथिंग। अगेन ऑल्सो आई एम थिंकिंग टू, मेरा हो सकता है सितंबर 25 हमारा दिल्ली में कुछ फंक्शन होता है, वाइफ को बोला चलो ठीक है चलेंगे, 2 दिन के लिए जाएंगे, लाइक दिस वी आर प्लानिंग कि वहां पे भी थोड़ा जाना है। तो मेरा कहने का मतलब है अगर आप डिजायर करोगे तो सब होगा। गुरुदेव इतना बोला, गुरुदेव मेरे को पहला बार दीक्षा लेने के बाद में पहला मेरा बात यही बोला था, पूछा था मायापुर में, दिस टाइम यात्रा वहां पे कोई पे अयोध्या होने वाला था, कोई पे आर यू कमिंग, गुरु महाराज बोलते हैं यू शुड कम, ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब था आर यू कमिंग, ये क्वेश्चन कर दिया, मतलब आई शुड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गो देयर, गॉड फॉरबिड्स तो कुछ हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज हम लोग चेष्टा करना है। हम लोग क्यों नहीं करते हैं, एक एक चीज को हम जानते हैं, थियोरेटिकल जानिए, प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग जो हो सकता है उसको करना चाहिए ना। हमारा कैपेबिलिटी है, अगर हम ट्राई करेंगे, थोड़ा 19% है तो 20% कर सकते हैं हम लोग, ट्राई करेगा, 19 को 20 करना है, लेकिन हम लोग ट्राई नहीं करेगा और बोलेगा हुआ नहीं कैसे होगा, हम तो ट्राई नहीं करता है, ट्राई करो सब कुछ होगा। अरे गुरुदेव का डिजायर है, भक्त का डिजायर है, उसको फुलफिल करो अपना। इसलिए मैं बोला कोई भक्ति में बढ़ेगा ना, एक भक्त का हृदय में बैठ जाओ, एक भक्त आपका एक्टिविटी और आपका सेवा इस टाइप का करो, वो भी बहुत ज्यादा नहीं मांगता है, लेकिन एक हृदय, एक शुद्ध भक्त का या जो है उत्तम भक्त का हृदय में आप बैठ जाओ, और आप हृदय में बैठ गया तो फिर आपको भगवत जाने के लिए आप सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यू विल बी गोइंग, कोई रुक नहीं सकता। इसलिए मैं बोला भाई दर्शन, आप जाओगे कोई भक्त आपको दर्शन करेगा, भगवान हम जाते हैं जगन्नाथ दर्शन करने के लिए, भगवान में कोई भाव ही नहीं आता है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इसीलिए जाते हैं जगन्नाथ को, हम तो जा रहे तो जगन्नाथ तो देख रहे हैं ना, मैं जा रहा हूँ बोल के। एक इसीलिए कि हरिदास बोल के एक भक्त है जो कि उनका अंधा है, ये वृंदावन में डेली जाते थे दर्शन कर लेने के लिए बांके बिहारी जी को, वहां पे जो बच्चा लोग सब घूमते थे, चलते हैं बाहर में या घूमते हैं, बोलते ये अंधा आदमी है, ये डेली क्या भगवान को दर्शन करता है। तो हरिदास को एक दिन वो पूछे, हरिदास जी आप तो अंधे हो, आप भगवान को जाके क्या दर्शन करते हो। तो बोला मैं तो अंधा हूँ, बांके बिहारी तो अंधे नहीं ना, यही बात बोला है कि मैं अंधा हूँ, मैं नहीं दिख पाता हूँ, लेकिन बांके बिहारी अंधा नहीं है। ये होना चाहिए हरिदास जैसे भक्त का भाव होना चाहिए। हम लोग का भक्ति नहीं है, लेकिन हम जाके प्रेजेंट देगा ना, तो भगवान जानेगा मेरे पास में प्रेजेंट दिया, उनका आशीर्वाद देती है, प्रभुपाद का आशीर्वाद करती है, प्रेजेंट दिया, तो उसका कृपा उस जो जाएगा उसको मिलेगा जहाँ पे भी हो। बट एनीवे हम लोग अटेंड नहीं करेगा तो मिलेगा नहीं, यही प्रिंसिपल से हम जाते हैं, और हमको प्रभु बोलता है कि आना चाहिए, आने से अच्छा है, तो इसलिए मैं जाता हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे को बहुत प्यार है, बहुत भक्त है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे को भक्ति मिलता है, मैं जाने से मेरे को पूरा ये हो जाता है, ऐसा नहीं। भक्त एसोसिएशन में मिलता है, थोड़ा सा एनकरेज मिलता है, और भक्त लोग का आशीर्वाद मिलता है, क्या है उनसे, उनका दर्शन हुआ, दर्शन में पवित्र हो जाते हैं हम लोग, पाप खत्म होता है, और उसका हम उनका दर्शन करता है, वो हमको दर्शन करके आशीर्वाद देता है, वो हमको दर्शन करने से बच्चा को बढ़ाता है, जैसे भक्ति में हम जाने से बढ़ जाएगा, इसीलिए हम जाते हैं। ये थ्योरी है, शास्त्र में दिया, उसको प्रैक्टिकल करना है, तभी कोई भक्त आगे बढ़ सकता है। हम लोग थ्योरी को सुनते हैं, इसलिए मैं बोला जैसे अब प्रैक्टिकली कैसे कितना अटेम्प्ट करना है, ऐसे नहीं कि लोग कर नहीं रहे, वो नहीं बोल रहा हूँ, बट हमको जितना कर रहे हैं और भी आगे बढ़ना पड़ेगा, और भी आगे करना पड़ेगा, तो दैट इज थिंग। इसलिए मैं बोला गुरु महाराज से दर्शन करना है एवरी ईयर विदाउट फेल, वन शुड, मतलब आप तो रामानुजाचार्य का स्टोरी सुनेंगे तो आप हड़बड़ा जाएंगे। रामानुजाचार्य का जो माने भक्त है, डिसाइपल है, उसका एक स्टोरी, 2 स्टोरी है उसका। जो उस टाइम में भक्त का ना, माने एक भक्त है, वो बहुत गरीब थे, उसका हस्बैंड उस टाइम में बाहर चले गए थे, सडनली रामानुजाचार्य का शिष्य लोग रामानुजाचार्य आके पहुंच गए, उनका वाइफ उस टाइम में थी, तो उनको कैसे खाना पीना खिलाएगा, क्या करेगा बोल के, उनका पास में पैसा नहीं थी, तो इसलिए क्या करेगा, इसलिए एक साहूकार था, उसका पास में गया। वो साहूकार थोड़ा क्रिकेट माइंड का था, तो वो बोला कि ठीक है, मैं ये बोला मेरे को थोड़ा सा ये सब दे दीजिए, मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं तो पैसा भी नहीं, क्या करूंगा।
तो बोला कोई बात नहीं है, हम दे देंगे, आप सब कुछ सेवा करने का बाद में फिर हम आपसे अलग से मिलना है। ये देखिए सुनिए, मतलब व्हाट वाज हिज इंटेंशन, ये बोल दिया कि हम ही ट्राई टू एंजॉय, स्ट्रेट बात है। तो बोला ठीक है, गुरुदेव का सेवा करना है, कोई बात नहीं है। तो इसीलिए सारे चीज लाया, सब कुकिंग किया, करके अर्पण किया, भोग लगाया, फिर गुरुदेव को और उनका भक्त को खिलाया। उसका बाद में उसी टाइम उनका हस्बैंड आके पहुंचे। उसका कहाँ से तुम सामान लाया, कैसे किया ना, आप तो नहीं थे और साहूकार का पास में गया था। तो इस साहूकार बहुत दिन से मेरा ऊपर नजर रखता था। तो हम तो गया और बोला कि सामान चाहिए मेरे गुरुदेव का सेवा करने के लिए। तो साहूकार वही बोला कि ठीक है आप ले लो। शी वाज ऑनेस्ट, तो शी एक्सप्रेस टू हर हस्बैंड। तो बोलता है ठीक है। तो मैं बोला ठीक है, क्या कोई बात नहीं है। अभी तक तो हम उसको कभी भी प्रपोजल को राजी नहीं हुआ था, आज तो गुरुदेव का सेवा है तो राजी हो गया। तो उसका हस्बैंड बोला बहुत अच्छा काम तो आपने किया, गुरुदेव को सेवा करने के लिए बहुत अच्छा डिसीजन लिया। ठीक है, गुरुदेव का हो गया, प्रसाद हो गया। वो गुरुदेव का खाने का बाद में जो उच्चिष्ट है, महाप्रसाद है, वो थोड़ा रख दिए थे। वो बोले थे कि आप लोग ले लो, आप लोग ले लेना। उसी महाप्रसाद जो उच्चिष्ट था, महाप्रसाद, उसको रखे थे। उसके बाद में गुरुदेव ये सब चले गए। तो देन हस्बैंड बोला नाउ यू गो टू दैट पर्सन, साहूकार के पास में जाओ। तो ये जो साहूकार के पास में गया, ये बोला था ये प्रसाद थोड़ा लेके जाओ। ये जो महाप्रसाद लेके गया था, उसका साहूकार उनको बुलाया, आराम से बेडरूम में बुलाया, बैठाया। देन ये बोला कि मेरा पास में हम थोड़ा प्रसाद लेके आए हैं आपके लिए। तो गुरुदेव का महाप्रसाद है, मतलब प्रसाद है। तो वो गुरुदेव का प्रसाद को, वो महाप्रसाद को मिला। उसको मिलने का बाद में उसका हार्ट में इतना चेंज, ये बोला ना, तीन चीज भगवान का जो भक्त का चेंज करता है, एक उच्चिष्ट है और एक पादुत पानी है और जो उसका धूल है। उसका हार्ट में पूरा चेंज हो गया और वो बुरा इसको माँ बोल के मानी। बोला मेरा गलती हो गया, आई एम सो सच अ रास्कल एंड मैं आपका माने आभारी हूँ। नाउ आई वांट टू टेक इनिशिएशन फ्रॉम योर स्पिरिचुअल मास्टर। देन उसका बाद में ये उनके पास में लेके गए और रामानुजर्य से ये लोग दीक्षा लिया। दिस इज द फैक्ट ऑफ अ डिसिपल ऑफ रामानुजर्य। दूसरा एक स्टोरी है, रियलिटी है। एक रामानुजर्य का कुछ भक्त बोल रहे थे। रामानुजर्य एक भक्त को, और हस्बैंड वाइफ थे, उनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसको थोड़ा सा ज्यादा ही करते थे। तो ये लोग बोला हम लोग इतना सेवा करते हैं लेकिन आप उसको इतना ये करते हो। तो उसी दिन वो बोला ठीक है मैं प्रूव करता हूँ, उनका मेरे लिए क्या भक्ति है मैं दिखाता हूँ तुमको, तुम लोग जाओ। और उस दिन वो उसका हस्बैंड नहीं है, तो ये लोग गए। जाने के बाद में देखे, इन लोगों को पता चल गया कि इन लोगों को कुछ जरूरत था, माने कुछ फंड्स जरूरत है। तो वो जो माताजी है वो पहन रही थी सम गोल्ड ऑर्नामेंट पहनी थी। तो इसीलिए ये जाके पहुंच गए थे और ये लोग चाहते थे उसको चोरी करके लाने के लिए। तो इसलिए ये इनको पता, ये जो ये पूरा सोई नहीं थी, शी वाज अवेक लिटिल बिट, बट ये लोग पहुंचे, इनको पता चल गया कि गुरुदेव का ये लोग आए हैं। तो गुरुदेव का भक्त है, माने शिष्य है। तो इसलिए ये खोलने शुरू किया उनका पैर से, ये सब सारे एक एक साइड से खोलना शुरू किया। जो गोल्डन ऑर्नामेंट्स वो उसको खोलने के लिए अलाउ कर दिया। दूसरा ऐसे करबट लेके सोए थे तो उस साइड से कैसे खोलेंगे, तो ये नींद में थी जैसे लगा और ऐसे करके करबट चेंज कर दिया। और उसके बाद में वो करबट चेंज करके दूसरा साइड दिखा दिया और निकाल के उसको लेके चले गए। तो एक्चुअली उनको पता था कि शी वाज दैट नॉट, ये वो लोग सोच रहे ये सो रहे थे, एक्चुअली शी वाज अवेक। तो बाद में उसको प्रूव हुआ, पता चल गया कि एक्चुअली शी वाज अवेक एंड शी अलाउड इट टू, माने ये को निकलने के लिए। तो इसलिए वो रामानुजन ने बोला देखो वो इस तरह का भक्त है क्योंकि गुरुदेव का सेवा के लिए कुछ चाहिए तो उसका सारे ऑर्नामेंट्स को देने के लिए पूरा तैयार हो गया। एंड आई थिंक ही वाज नॉट दैट मच वेल टू डू फैमिली, ऐसे बहुत अच्छा फैमिली का, मतलब बहुत धनी फैमिली का नहीं थे, तो इसीलिए वो सारे दे दिए। तो ये जो गुरु रामानुजर्य का जो है ना वो भक्त लोग के, इसको बहुत शिक्षा मिलता है।
तो ये स्टोरी का जो ये रियल घटना का ये बोलने का कारण है कि हम लोग जो चीज हम प्राप्त होते हैं वो भगवान का कृपा से मिलता है, और भगवान उसको जो देता है जितना जरूरत है आराम से सब देता है, हर चीज को व्यवस्था करता है। हम लोग उसका ऊपर फेथ रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। I also don't have that much faith, but I also pray at the lotus feet of all the devotees and Lord that that type of faith, at least unflinching faith at the lotus feet of Guru should come, so that we can serve him better and serve Krishna better. Hare Krishna. How do you feel this about these two incidents? रामानुजाचार्य जी का ये जो दो इंसिडेंट्स आप लोग कैसे क्या सीखने मिला, कैसे आपका हार्ट को टच करता है? मैं तो ठीक से बता नहीं पाता हूँ, बट उसमें कोई कल भी छूट भी जाता है एंड आई फॉरगेट समथिंग आल्सो। बट आप पढ़िए ये सब स्टोरी को रामानुजाचार्य का, तो देखेंगे रामानुजाचार्य का भक्त का क्या पराकाष्ठा है, और इसीलिए रामानुजाचार्य तो भगवान का भी गुरु बन गए थे, ये भी है वरदराज। तो ये सब है, मतलब उनका भी गुरु मैंने सतपूर्ण या कौन है, उनका गुरु भी इनको बोला आप मेरा गुरु बन गया, मतलब आपसे मैं सीखना बोला। तो क्योंकि उनका गुरु बोला था कि आप ये जो मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, ये 18 बार गए थे एक श्लोक का समझाने के लिए गुरु का पास में, 17 बार उसको रिटर्न किए थे, 18 बार 18 में उसको बोला था जो सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये श्लोक के लिए 18